Hey guys, welcome back to the second episode of the Injury Time podcast. I'm Vinay. This is Debarthi, and today we have a special guest, Abhinav. Abhinav, would you like to introduce yourself? Sure. I'm from Delhi and I've been supporting Barca since I was 11 years old and since 2009. It was Barca's first triumph of third triumph of Champions League. So I've been watching since then, and many people have said that I just watched them because of their glory days, but still I'm supporting them in this period. So it's very tough, but I'll still go. And I'm a huge Messi fan, and I've played on a professional level in India as well as in Germany. In India, I played I League B Division, and I've also been in a trial camp with Delhi Dynamos. I was scouted from my college tournaments, and in Germany, I played in 6th division. So my experience over there was pretty well, and I was doing my masters in Europe. And since 2020, I've been in India working in a sports firm right now. अरे बढ़िया चलो so as everyone you've heard about Abhinav, he's a Barca fan. I'm a Barca fan. Vin is a Barca fan. It's like a Barca trio over here today. So we've decided that this episode will be a very Barca special. It will be a Barca special episode. So we're going to be talking about Barca, how we've been in love with this beautiful club, and all the updates and news that you're going to get about Barca. That's what's going to be in this episode. And I hope you like it. So let's starting out. Let's स्टार्ट talk करने से about. पहले भाई एक चीज, हाँ बता कल का एल क्लासिको देखा किस किस ने? भाई मैंने यार obviously But भाई व्हाट अ मैच यार. obviously हारे बट स्टिल व्हाट अ मैच. even like I saw वो बेंजेमा का पोस्ट देखा था. Even he posted on story. वो चावी के साथ उसने फोटो डाली and he said हाँ. respect. And even हाँ, Carlo हाँ. Ancelotti accepted that Barca were the better side. Everyone- मैंने ये बेंजेमा every- वाला नहीं देखा, बट वो कार्लो एंसेलोटी का मैंने नहीं, सुना. नहीं, उसकी स्टोरी every- देखी. even Benzema said that this Clasico has been one of the most exciting one because it was tied up till the end, and like we had this like we were playing very carefully because we didn't know when Barca will score because they were so tactical and they were up to their mark. And yes, we have enjoyed this because Barca is a very strong team who control the ball. This was what somewhat Benzema had said, and like this is like respect, bro, respect. चाहे तुम गोल मार दो 2-3 या हरा दो हमें, but respect. ट्रांजिशन पीरियड में इतनी इज्जत तो किसने नहीं दी हमें. And Even इज्जत से that ज्यादा with पता so मुझे many young सबसे ज्यादा players. बढ़िया क्या लगा था उसमें? Exactly. लाइक ट्रांजिशन चल रहा है, नो डाउट, बट भाई कितना लाइक इवनली मैच्ड वो था एक कंपटीशन कूदा में. दिखाया है. हाँ वही तो भाई, जाके लाइक अबे ललकार के आए हैं जाके वहां सऊदी अरेबिया This में. is I personally believe कि this is like half the squad हमारे पास ढंग का है, and somewhat अच्छा हाँ main players थोड़े बहुत आ गए हैं. Some players are there जो injury से recover हो के आए, have recovered from COVID and come. ठीक है, we have some of the main players, but भाई इतने players के साथ ही we played a very good match भाई. तो I just can't imagine if सारे players ठीक हो गए, if they come back, it's gonna be amazing. यार हमारा ना जस्ट इतने से प्लेयर्स नहीं थे. तो तुम मतलब थोड़ा ना एक बार बायस हम अपना बारसा फैन होने का हटा देना, तो एक बार सोच के देखियो, जब बार्सिलोना के प्लेयर्स आ रहे थे तुमको तब ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैड्रिड के प्लेयर्स आने थे. लाइक भाई वो बारसा देखा था में अंसु फाती. भाई जब फाती बारसा में फाटी आ रहा है, डिपाय आ रहा है, हाँ पेड्री भाई. आ रहा है, वो कौन जुदला आया भाई, कितने Like, लोग नहीं आ रहे all थे. of क्या them. है? अभी हमारे इतने सारे जुगला. इंजर्ड थे अच्छा, और कोविड जुगला. सेटबैक था. हाँ वही उसके तो बाद हम लाइक एंड लाइक अभी भी हमने डेप्थ अपनी थी बहुत बेस्ट स्क्वाड 11 में हमारी. एग्जैक्टली. Oh, भाई, best thing is this guy Fati यार, he literally deserves the number 10. आते ही goal every single time. Whenever he comes back, he scores a goal. इसको देख के वो याद आता है इनिशियली थोड़ा थानोस एब्सेंट वाला. था मैच में, हाँ exactly. लाइक उसके Inevitable. बाद भाई अचानक जाके लाइक he just he turned the match around. And अपने वो आप ही. last bicycle kick अगर वो Bicycle. लग जाता ना वो यार, कितना sick अगर होता वो यार, लग जाता, वो- आग लगाया था यार वो तो. It was मतलब सही में इतना क्लोज था and anyone who could finish it was Fati and he couldn't do it तो नहीं होता. Obviously Madrid was like they were trying to capitalize on the counter attacks only. जितना मैंने Through देखा. Vinicius.
through Vinicius हाँ, and Asensio विनीशियस भी को बॉल डालो, वो interior खेल बेंजेमा रहा को देखेगा, उसके बाद भाई वालवर्डे कहीं पीछे से आ जाएंगे, देन Yeah. यार मोस्टली गोल्स ऐसे ही पड़े थे। देख मैं बता रहा हूँ जो हमने हाई लाइन डिफेंस खेला है जिसकी वजह से वी वर वेरी वल्नरेबल, सच बता रहा हूँ, दिस इज ट्रू, इवन ज़ावी न्यू व्हाट ही वाज प्लेइंग हाई लाइन डिफेंस के साथ, बट एंड लास्ट बाद में क्या हुआ, एक्स्ट्रा टाइम पे देखना, एक्स्ट्रा टाइम से थोड़े पहले जब हमारे पास हाई लाइन डिफेंस पे भी वी हैड 4 इन द बैक, देन वी शिफ्टेड टू 3 इन द बैक, ठीक है, उसके बाद भी वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ काउंटर अटैक्स, बट डिफेंस थोड़ा बहुत बेटर हो गया था, मुझे लग रहा था ऐसे यार। मुझे पता है उसका रीजन क्या लगा था, देख ऑब्वियसली लाइक जितना हाई डिफेंसिव लाइन उसने रखा था जावी ने, वो ऑब्वियसली चॉइस थी उसकी, क्योंकि उसको लाइक बहुत ऐसे लाइक वो एक वर्ड है ना प्रोफंडिटी, उसको प्रोफंडिटी वाली मतलब फुटबॉल खिलानी थी, क्योंकि भाई उसने पहले सोच रखा था कि उसको अटैकिंग गेम खेलनी है, उसको ये नहीं कि भाई बहुत मतलब प्रैग्मेटिक टाइप ऐसे जो आएगा फिर बॉल को पास वास करके देख लेंगे, उसने पहले ही डिसाइड किया कि उसको हाई लाइन रखनी है, हाई प्रेस करना आगे के उसमें उनके हाफ में। हाँ, one more thing is that is why he raised Ferran, Araujo और Pedri, exactly. Fati, because he wanted to win the game. And Araujo की 7 दिन पहले सर्जरी हुई है और भाई हैरानी की बात वही है ना, 7 दिन भी नहीं हुए उसको। हाँ एग्जैक्टली 7 दिन नहीं हुआ, वो हाथ में 2 स्क्रू लेके 3-4 दिन कुछ थे बस। He had 2 screw implantations in his hand भाई, वो 2 screw हाँ लाइक उसका वो एक्सरे कुछ रिलीज हुआ था ना मीडिया में, भाई ये जो 2 ऐसी हड्डियां होती हैं वो लाइक आधे टूट रखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, मैं जब मैड्रिड का गेम देख रहा था, नो डाउट मैड्रिड वाज प्लेइंग वेल एज वेल, ठीक है, मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैड्रिड का जो मिडफील्ड था फर्स्ट हाफ में जितना अच्छा था, सेकंड हाफ के बाद से द मिडफील्ड स्टार्टेड टू डिसअपीयर समवॉट, ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है जो मैड्रिड का फॉरवर्ड था जिसमें बेंजेमा और विनीशियस ही थे मैक्सिमम, उनका ही कंट्रीब्यूशन था, मैं बस ये बोलना चाहता कि यार पिछले साल तो कुछ अलग ही सुनाई दे रहा था बेंजेमा की कि भाई इसको पास मत करियो, दिस वन इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑन माय मदर, मेंडी को बोला था यार, नहीं इसी को विनीशियस को बोला था यार, विनीशियस को बोला था, मेंडी इज नॉट प्लेइंग इन आवर टीम बारे में। और मैं सोच रहा हूँ, मैं पूरे मैच देखते हुए सोच रहा हूँ बेंजेमा की तरफ देख, मतलब ये पार्टी बदल ली साले क्या है यार, बट एंचेलोटी ने कुछ तो किया है भाई, कुछ काला जादू वाला जादू कुछ करके आया है वो, बट लाइक विनीशियस का वो था इंटरव्यू टाइप आया था जिसमें वो बोल रहा था कि इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ वन सीजन प्रैक्टिस, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन माय शूटिंग फॉर पास्ट 3-4 सीजंस, एंड आई थिंक उसी का है, उसकी सिर्फ शूटिंग वो सही नहीं थी एंड डिसीजन मेकिंग, एंड दिस सीजन यू कैन सी दैट हाउ मच ही हैज इंप्रूव्ड। उसने भाई अपना शेफ और पर्सनल ट्रेनर फिजियोथेरेपिस्ट सब लगा रखा है, सब चीज उसको कुछ अचानक एक दिन ऐसे कुछ रिपोर्ट आई थी, कहता भाई उसको फुल क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाले मोड में जाना था कि भाई पूरी मतलब यार गेम का हर एस्पेक्ट जो गेम का हर एक्सटर्नल एस्पेक्ट भी उसको कंट्रोल में चाहिए था, तो इसलिए उसने भाई शेफ वेफ सब अपने पर्सनल लगा लिया, एंड आई थिंक तभी वो अभी एम्बापे से कंपैरिजन में आ सकता है। यार विनीशियस का नो डाउट अच्छा भाई मैं लिटरली बोलना चाहूंगा कि विनीशियस को वी कैन कंपेयर विद एम्बापे बिकॉज़ एम्बापे हैज बीन प्रूविंग इट सिंस a long time, ठीक है, since मोनाको वो प्रूव करता आ रहा है इसको। विनीशियस नो डाउट उसका 1-2 सीजन पहले ठीक था, लास्ट सीजन वाज वेरी बैड, दिस सीजन इज गुड, he's come back to being a world class player, ठीक है, लेकिन अभी नहीं एम्बापे के लेवल पे नहीं है वो, बट हाँ ठीक है, he's good, he's playing very good यार। it's like saying तेरे को वो सीजन याद है मोहम्मद साला का जब वो एकदम लिवरपूल में आती लाइक ही जस्ट blew up 39 goals I guess 18-19 था, 17-19 कुछ 18-19 था पक्का, हम लिवरपूल के अगेंस्ट खेले थे तो he blew up in that put नहीं 17 में था, 17 में he blew up फर्स्ट सीजन तो हाँ, तो सब कंपैरिजन करने लग गए थे लाइक रोनाल्डो और मेसी के साथ, तो देख साला को अगर उस टाइम बोल देते ना कि हाँ यार वर्ल्ड क्लास नहीं है, 1 सीजन है ये वो, तो मेरा उस टाइम भी पर्सपेक्टिव यही था कि इस सीजन इसके बारे में कुछ कमेंट देना बहुत हेस्टी रहेगा। आई गेस इसको 2 सीजन ऑब्जर्व करो, हाँ उसके एक सीजन में किसकी कंसिस्टेंसी पता चल रही है, 2 सीजन हैरी केन का याद है तेरे को, हैरी केन को 5 सीजन वंडर बोलते थे। मैं तो बोल रहा हूँ हैरी केन का जब से मैन सिटी वाला कनेक्शन उठा है ना, ही हैज जस्ट डिसअपीयर्ड, ही हैज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड टॉटनहम की स्क्वाड से, लाइक
आई थिंक ही इज सो डिसअपॉइंटेड कि वो छोड़ के जा नहीं सका, कि उसने बोला कि पहचान मेरे को खेलना ही नहीं है, वैसा टाइप का हो गया उसका। वो लेवी इतना स्ट्रिंजेंट है ना, ही वोंट लेट हिम गो। हाँ यार, इतनी जल्दी नहीं जाने देगा। बट भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट में साल बचे हैं? अभी उसका 26 तक साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म था है यार। मेरे हिसाब से। नहीं 26 तक कॉन्ट्रैक्ट था उसने, उस वो लेवी अभी के तक नहीं साथ जान के साइन। रखा। 26 तक कॉन्ट्रैक्ट है भाई उसका, 26 या 24 तक। तो उसको ठीक है ये तो फिर लेवी क्यों जाने देगा? आई एम लेवी नॉट श्योर, पता नहीं, पर आई थिंक उसको, सो मैं यही बोल रहा था यार, केन का तो पूरा मेंटली वो रहा ही नहीं वो स्टेबल प्लेस पे कि मैं टॉटनहम के लिए परफॉर्म करूंगा। ही वांट्स टू विन ट्रॉफीज नाउ दे आर आउट ऑफ एवरी कप। अगर कॉन्टे किसी को रिवाइव नहीं कर पा रहा हाँ तो मतलब भाई कितना demoralizing वाहियात क्लब होगा, तू सोच बस यार। भाई कॉन्टे ने लुकाकू को भाई हमको कन्विंस कर दिया कि लुकाकू वर्ल्ड क्लास हो चुका है। हाँ नहीं, आई थिंक इट्स one of those things कि Lukaku is not a system player, he is the system, sort of like that, because इधर Tuchel को देखो, he uses space and Inter पे Lukaku पे pinpoint होते थे सारे passes। Exactly, उसके around game बनता था। That is the thing what maximum of the players are facing कि कोई टीम से आके वापस वाले। Anyways, let's start about Madrid eyeing Araujo। ये रूमर अभी हाल ही में निकला है। फेंक डालूंगा मैं भाई सुअर का सर फीगो के टाइम पे पता नहीं जिसने भी फेंका होगा अगले एल क्लासिको में मैं सुअर क्या मैं भैंस का सर काट के फेंकूंगा। अब भाई आई थिंक इट्स अ बिट ट्रू, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था व्हेन ही वाज बॉट फ्रॉम उरुग्वाई, तो तब भी रियाल ने पोच करने की कोशिश करती अराउजो को। बिफोर जॉइनिंग बार्सा ही वाज पोच्ड। या and I think this is a time that they can poach him by giving him more money, but Araujo को देख के लगता है he has एक passion इतना है उसमें, वो बार्सा नहीं छोड़ेगा। वो एल क्लासिको के बाद एक पिक्चर निकली थी, मेरे को पता नहीं तुम में से कितनों ने देखा था, बट वो बस आई गेस वो टनल पे जा रहा था लाइक मैच खत्म करने के बाद, एंड वो बस ऐसे पकड़ के जा रहे, मतलब उसने वहां पिच के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से लेके टनल के एंड तक ऐसे करके चला है वो, क्योंकि वो मैड्रिड के बहुत सारे फैंस थे ना उसमें क्राउड में। तो वो तुम एक चीज वो भाई सू किए जा रहे थे भाई बैठ के वहां। मुझे तो लगता है वो पूरा स्टेडियम ही मैड्रिड फैन से भरते। मेरे को तो एक बार्सा फैन देखा नहीं पूरे टीवी में। 70-30 का प्रोपोर्शन लग रहा था, बहुत कम प्रोपोर्शन उसमें थे, बहुत ज्यादा कम। मैं बोला यार जब दुबई में मैच हो रहा था ना, नहीं अरेबिया सऊदी अरेबिया में मैच हो रहा था, सऊदी अरेबिया में रियाद, तो जावी वहीं तो खेल के आया था ना उसका पिछले बार। नहीं कतार में था यार। शिट यार ये काट देना यार। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। कोई ये अच्छा होगा, ये ऐड कर दियो, ये ब्लूपर में डाल दूंगा। तेरी ज्योग्राफी कोई देख नहीं रहा भाई, चिंता मत कर। एनीवेज तो बहुत गंदी ज्योग्राफी। एनीवे छोड़ो यार। तो भाई मैंने ये मेंटालिटी लेके देखा था कि अभी कुछ दिन पहले तो खेल के गया था ऐसे, मतलब खिला के गया था बच्चों को, अभी कोई सपोर्ट करने क्यों नहीं आ रहा है यार? पूरा स्टेडियम वाइट हो रहा था। हाँ यार सारे मैड्रिड फैन थे यार। मुझे तो जेन्युइनली लग रहा था भाई बिल्कुल अवे में खेल रहे हम। जब भी क्राउड में भी फोकस कर रहे थे सिर्फ मैड्रिड वाइट शिट जर्सीज दिख रही थी बहन। हां बकवास सा आ रहा था साले उनका चोटू सा कलर भाई। लेकिन मैं मारो या जो भी करो यार, बट मैड्रिड की जर्सी मेरे को बहुत अच्छी लगती है अभी करंट वाली। ये वाली हाँ अभी वाली थोड़ा सा क्लास। अभी वाली मैं चल अभी वाली तो मान लूंगा, बट पिछले सीजन वाली तो मेरे को बोलता है भाई देखो पता है बेस्ट जर्सी वैसे उनकी दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं, वो व्हाइट एंड गोल्ड में जो फॉन्ट था वो था जो क्रूज ने भी बोला था। हां नो नॉट 13 यार, अभी मेरे को क्योंकि गोल्ड वाला वही याद आता है। नहीं वो नहीं था। मुझे सबके साथ एक जर्सी बहुत आइकॉनिक लगती है जिसमें उन्होंने वो ड्रैगन किड बना रखा था ब्लैक में, याद है? वो इंटर का भी था, वो एक जापानीज आर्टिस्ट था उसने बनाई थी ये जर्सी। इंटर की एक ब्लू कलर की जर्सी में भी और रियल की ब्लैक जर्सी। हाँ ब्लैक जर्सी थी जिसमें ड्रैगन, जब रोनाल्डो खेलते थे तब की बात है यार, मतलब ब्लैक जर्सी जिसमें एक आई गेस वो 2015 था। हाँ शायद मैं ध्यान नहीं देता था। बहुत बढ़िया लगता था यार, मतलब देख मैं जर्सी का तो फैन हर समय रहा हूँ, लाइक आई हैव बीन कलेक्टिंग जर्सीज ऑफ मेनी डिफरेंट टीम्स। रियल की भी नहीं रियल की नहीं खरीदता मैंने बार्सा की खरीदता हूँ, थोड़े बहुत अलग अलग टीम की खरीदता। मैं तो बहुत ट्रेटर अमंग अस
नहीं ट्रेड नहीं। मैं बहुत अशेम्ड हूँ कि मैंने 2013 में बायर्न म्यूनिख की जर्सी खरीदी थी, वो अभी है मेरे पास। भाई नहीं यार, भाई Bayern- म्यूनिख को तो भाई मेरा अभी I ना know they bettered us, पर यार वो क्लब अच्छा है, भाई, मतलब they have some principles, that's why I can मैं तो respect बता them. रहा हूँ, प्रिंसिपल्स ना साइड में रखो, मेरे को ना एरोगेंस हटाओ पहले। अरे तो मैं तो बहुत It's a arrogant typical हो German thing. I can tell you it's a typical German thing, and Yeah. that was noticeable. I told you right, I studied in Munich, so I could see that. And even when I went to their stadium, they had that arrogance कि दूसरी टीम आई है, उनका तो फर्क ही नहीं पड़ता, अब हम ही है जो है। They had बायर्न, that तूने mentality. वो टर्म सुना वहाँ बायर्न डूसिल? Bayern Dussel, what do you mean? ये लाइक बुंडेसलीगा के उसमें ना एक कॉमन टर्म है जो कि सारी टीम्स अपार्ट फ्रॉम बायर्न दे यूज। अच्छा बेसिकली इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका मतलब है बायर्न और लक, डूसल का मतलब लक। Oh, तो अच्छा भाई, ये मेरे ख्याल से ना 80s में कभी ओरिजिनेट हुआ था, जबकि भाई बायर्न ऐसे ना जीतने वाले टाइप मैचेस जाके जीत के आ जाती थी। अब वो कोइंसिडेंस बोलो या भाई फिक्सिंग बोलो, वो भाई वो तो फिर सब्जेक्टिव चीज होगी। भाई But देखो मैं तो बोला बायर्न डूसल बहुत भाई एक मेरे हिसाब से तो प्रोमिनेंट चीज है बुंडेसलीगा में। देख मैं तो बोल रहा हूँ, अभी तुमने बोला कि आई रिस्पेक्ट बायर्न फिर इट्स अ बिग टीम, तू बोल रहा है कि दे आर वेरी एरोगेंट, मुझे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर 8-2 एंड ये 2-6-0 बायर्न बाप है भाई, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर बायर्न बाप है स्क्वाड हमारा। अच्छी है, स्क्वाड तो मैं भी only appreciate City करता and हूँ। PSG they can compete with them. हाँ एग्जैक्टली, Real फटके बायर्न से यार एक चीज इसमें क्लियर हो गई, मुझे अभी कोई शर्म जितना नहीं सब बोल बोलने रहे थे में ना, फटके बायर्न से। हाँ वो तो यार ठीक है। अब भाई ऐसी टीम हम भाई बिल्कुल, अबे 19 साल के लड़कों को उतार रहे हो तुम फील्ड में, जो कि भाई 30 साल के वेटरन्स के साथ compete करेंगे, किसको नहीं डर लगेगा। अब भाई मेरा पॉइंट ये है कि जितने ये मैड्रिड फैंस चौड़ रहे थे, मेरे को पता नहीं तुमने ऑब्जर्व किया था कि नहीं किया था, जब हम यूरोपा में चले गए तो ये लोग बोल रहे थे ना एंचेलोटी भाई एकदम बाप, वो आदमी चौथा चैंपियंस लीग जीतेगा, वो करेगा ये करेगा। भाई मुझे लगता नहीं है इस एल क्लासिको के बाद कि भाई अगर एंचेलोटी की लाइक आई गेस एक एल्बा के अलावा बाकी सब तो मतलब स्टार्टिंग 11 वाले ही प्लेयर्स थे उसके। हाँ वो तो सही है, बट तो भाई अगर ये टीम ऐसी खेल रही थी, मेरा पॉइंट ये था, तो भाई लाइक ठीक है, मतलब इट्स नॉट कि ये बायर्न शायन के साथ अभी compete कर सकती है। हाँ At least Madrid. आई नो दिस इज अ बार्सा स्पेशल एपिसोड में, बट मैं थोड़ा बार्सा से अनबायस्ड होके बोल रहा हूँ। मैड्रिड का जो अभी टीम है ना, लाइक इंक्लूडिंग मैड्रिड्स बेंच, ठीक है, मैं सिर्फ फर्स्ट टीम की बात नहीं करता, स्टार्टिंग 11 की बात नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग इट्स बेंच आल्सो। आई कैन से मुझे लगता है कि जो अभी एल क्लासिको वाला परफॉर्मेंस हुआ है बार्सा मैड्रिड का, इट हैज बीन अ बिट लो, क्योंकि दे वर कंपीटिंग विद देयर राइवल्स, ठीक है। तो बार्सा भी इतना अच्छे compete कर रही थी शायद से, इसलिए हमें दिखाने की मैड्रिड इज अ गुड टीम, समझ रहे? डू यू गेट दिस एंगल? मुझे ये लगता है कि बार्सा भी वाज परफॉर्मिंग वेरी गुड, जिसकी वजह से मैड्रिड वाज परफॉर्मिंग गुड, बट हमें दिखा नहीं, एंड वी वर। But it's a relative term ना जो तू कह रहा है। हाँ इट्स अ रिलेटिव टर्म, ऑब्वियसली। But like तू किससे, अगर तू बायर्न से कंपेयर करेगा, तेरे को लगता है रियल 3-2 बायर्न के अगेंस्ट जीत सकती है? मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा मेरा हूँ पॉइंट था, मैं ये बोल रहा हूँ कि चैंपियंस लीग हैज ऑलवेज बीन अ टफ फॉर रियल मैड्रिड, ठीक है। दे हैव ऑलवेज परफॉर्म्ड डिसेंट, नहीं बोलूंगा, दे हैव ऑलवेज परफॉर्म गुड इन चैंपियंस लीग। सो चैंपियंस लीग के हिसाब में मैं कभी बोल नहीं सकता ये रियल मैड्रिड आर गोना परफॉर्म गुड और नॉट। आई बिलीव दे माइट परफॉर्म गुड, क्योंकि उनका जो स्क्वाड है अभी, जो मैं बोला था स्टार्टिंग 11 प्लस बेंच, इट्स क्वाइट रिच, लाइक इट्स फिल्ड विद टैलेंट, ठीक है। तो there are possibilities कि अभी जाके they'll perform good in the Champions League. ब्रो मुझे अभी ऑनेस्टली यही लगता है कि अभी ना उनका एक वो अच्छा स्ट्रीक नहीं आता हर टीम का कभी बीच में। हाँ मैड्रिड अभी स्ट्रीक पे चल रही है, एंड इट्स एक्चुअली न्यूट्रल थिंग मेरे हिसाब से। इसको कोई अगर तुम अच्छा है बुरा बना के देख रहे हो, वो भाई वो तो फिर खुद का पर्सपेक्टिव है, बट इसमें अभी ना अभी जो इन्होंने लिटरली लाइक फील्ड की थी हमारे अगेंस्ट एल क्लासिको में, उसमें बस लाइक सेंटर बैक में एक एल्बा को और लगा दे बस, ठीक है। ये उनकी फर्स्ट स्टार्टिंग 11 है जो प्राइमरी रहेगी। नाचो भी इनमें से नाचो अब इनमें से किसी 2 लोगों को निकाल दे इंजरी की वजह से, लगता है सस्टेन होगा। रॉड्रिगो आया था, हमने देखा भाई रॉड्रिगो कुछ, मान ले विनिशियस इंजर हो गया, रॉड्रिगो Hazard है।
While Hazard, वही बोल रहा हूँ, Camavinga, do you think Valverde, Isco. they'll pick up the pace? Camavinga आया, he didn't do like bullshit in the match. कामाविंगा जाके- से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा तो Valverde का ज्यादा अच्छा था. रॉड्री का भी बेटर था. हाँ, Valverde Rodri तो भी obviously अच्छा उसने था, but Do you Rodri guys remember Valverde को एल क्लासिको में ही ACL इंजरी हुई थी ना हमारे साथ? एंड हाँ, वो हाँ. कब, हाँ याद नहीं तेरे को, जब ये अग्वेरो ने जब गोल मारा था आई थिंक, तब उस वाले मैच में वेलवर्डे को ACL हो गया था. है. हाँ आई थिंक. Yeah. और वो उसके बाद वो बहुत जल्दी आ गया. पता नहीं यार, मेरे को याद यार नहीं आ रहा. Valverde, मेरा पॉइंट ही वो है ना, अब भाई मान ले इनका मिडफील्ड जिसके दम पे भाई ये लोग 7-8 साल से चौड़ी मारे जा रहे हैं, और इनकी मतलब हिम्मत हो रही है कि चावी इनिएस्टा और बुस्केट्स के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को. अब भाई मान ले मॉडरिच की उम्र हो चुकी है भाई, मानो या ना मानो, बट स्टिल बट बहुत अच्छा खेल रहा है, नो डाउट. भाई देख, मैं मान ले इनमें से कोई एक चला क्या गया, खेला. मैं बोल रहा हूँ क्या लगता है तेरे को, लगता है वेलवर्डे करेगा? वो भाई खुद इतना इंजरी Never. प्रोन आदमी. भाई मेरा बस ऐसे- पॉइंट ही है कि स्ट्रीक ऐसे ही खत्म हो जाएगी इनकी. हाँ अगर- 2-3 इंजरीज के बाद हाँ, हो 2-3 सकती इंजरी है. आती ही खत्म हो जाएगी. हाँ वो तो है, बट तू जैसे बोल रहा है ना कि इनका जो मिडफील्ड ट्राई हो जिसकी वजह से ये इतना चौड़ रहे. देख, मुझे पॉडकास्ट है चलाना है, ठीक है, मुझे प्योर हीट नहीं फैलाना. तो मैं थोड़ा अनबायस्ड होके बोल रहा हूँ कि भाई 3 साल लगातार दे हैव वोन नहीं, चैंपियंस लीग. बट आई थिंक यार वो 3 साल जो जीते हैं ना, इट्स लाइक थोड़ा लक तो इन्वॉल्व है. यू गाइस नो कि हाँ, बायर्न लग Madrid- इसका Madrid आई also. आई बट मेरे को लाइक भाई 10 सब गेम्स को पता है. मैनेज करना बहुत इजी है. 38 गेम्स. ये खुद Even जिडान Zidane ने बोला है. admitted. कमेंट में ना बकचोदी झाड़ने हाँ. से पहले ना याद रखना, जिडान ने बोला तुम्हारा जो माई बाप है ये. इवन ही सेड कि लीग जीतना ज्यादा बड़ी चीज है बिकॉज़ इट्स लाइक अ मैराथन. 34 गेम कंटिन्यूअसली खेलना. 38 गेम्स. सॉरी. बुंडेसलीगा वो 35. तो ऑब्वियसली. मैं वही बोलूंगा कि यार कुछ भी हो, आफ्टर ऑल द वर्ल्ड रिमेंबर्स 3 हाँ, consecutive but like, चैंपियंस. हाँ वो मुश्किल है, और वो भी 3 साल. सुनो यार, लगातार मैड्रिड जीतना फैंस है. इतनी इज्जत दे रहा हूँ मैं तुम्हें भाई, प्लीज देख लेना वीडियो यार, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर देना भाई, जाओ. और कुछ नहीं. एनीवेज बट यार, या मतलब इस साल तो पक्का रियाल को ही जीतना है लीग. सेविया घंटा कुछ कर पाएगी. एथलेटिको सेविया चोक कर जाएगी अच्छे से. एथलेटिको चैंपियंस लीग में क्वालीफाई नहीं करेगी, शायद हम भी कर जाए. भाई हम कर जाएंगे, तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं काश यार. मैं पता है देबारती तक मेरे को बोलने जा रहा था बहुत पहले कि भाई मुश्किल है इस बार, यूरोपा ही जाएंगे अगले भाई साल. मेरे को ये भाई वो. जब हम 12वें पोजीशन पे आ गए थे ना, तो मेरे को भाई मैं तेरे को क्या नहीं बोला, यार, मैं उस टाइम भी तेरे को बहुत बोल रहा था समय ना, मैंने थोड़ा बोला भरोसा कि रख. भाई लीग बहुत आगे तक चलता है. हम पिछले साल भी आई गेस कब कहाँ थे, 14 में कुछ थे ना हम. नहीं पिछले साल इतना पीछे नहीं पहुंचे. पिछले साल डबल डिजिट में तो पक्का थे हम. अबे पिछले साल हम लीग जीतने वाले थे, पर हम ग्रेनाडा से हार गए अभी थे. तो बोल रहा हूँ, हम कंटिन्यूअसली एक बोल- स्ट्रीक पे कुछ चल भी लिए ना बदल फिर सकता है. जीतने के लिए. वो एंड में जाके उन्होंने हक दिया फिर. भाई जो भी हो, एथलेटिको ने जितना गंदा चोक किया ना पिछली बार लीग, बहुत वो गंदा जीतने के चोक बाद किया. मैं बोल रहा हूँ उनके. हाँ लिटरली दे चोक्ड वेरी बैड. लाइक लास्ट में दे वर डिपेंडेंट कि ये हारेंगे तो हम जीतेंगे. हाँ, वो तो हम भी थे, उस लेकिन वो पॉइंट अलग तक आना ही नहीं था भाई मैच को कभी, लाइक गेम को ही कभी. एग्जैक्टली. तो भाई वही बात है, मतलब जब 12वें पोजीशन पे होता है किसी का टीम, तो बंदा यही सोच सकता है कि भाई किसी तरीके से यूसीएल खेलने मिल मैं जाए. तो सोच रहा था यूरोपा जीत के हम पहुंच जाएंगे. पर मेरे को एक और डाउट है, तू अभी ये हम भरोसा यूरोपा नहीं में है करेगा या अभी नहीं, ना. क्योंकि अभी हमें क्वालिफायर देना है नापोली के हाँ, साथ. नापोली के अगेंस्ट क्वालिफायर देना है कि हाँ, क्वार्टर? दैट्स अ क्वालिफायर, क्योंकि क्वार्टर फाइनल नहीं भाई, क्वार्टर फाइनल है अब इनका सीधा. भाई देख मैं कितना Playoff ऑब्लिवियस है हूँ. भाई ये. मैं यूरोपा नहीं क्वार्टर फॉलो ही फाइनल नहीं भी किया नहीं, कभी. राउंड ऑफ 16 है. राउंड ऑफ 32 होता था पहले, अब राउंड ये ऑफ तो- 32 को हटा के वो कर दिया. आई बिलीव दिस इज अ प्ले-ऑफ टू एंटर. भाई हाँ, ऐसा प्लेऑफ ऐसा है राउंड ऑफ 32 को एंटर करने के भाई ऐसा तो नहीं है ना अब यूरोपा से निकाल दिए तो कॉन्फ्रेंस में घुसा देंगे. नहीं भाई, ये नहीं नहीं भाई, होना इतनी चाहिए. बेइज्जती नहीं करानी. नहीं. यूरोपा में आ गए वही बहुत बेइज्जती थी. बट कोई नहीं यार, कहीं से पैसे आ जाए, बस मैं ये चाहता हूँ. बेचारे बेइज्जती से पेड्री को थोड़ी पैसे चाहिए यार. है गोल्डमैन सैक्स दे रहा है लोन, कोई चिंता नहीं भाई. इतनी अब तो बेइज्जती दे करा दिया के पैसे उसने. मत. कितना मतलब- 1.98 के इंटरेस्ट नहीं, रेट पे नहीं. दे रहा है. हाँ इंटरेस्ट रेट उतना. And 10 लोन year तो आई का गेस भी है. 3 कुछ का लिया उन्होंने. 3 बिलियन का. हाँ. हाँ, and we have like एंड 25 गोल्डमैन सैक्स का पता है क्या, years वो इसको लाइक लोन की तरह नहीं देख रही, वो सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरह to देख रही है. investment है. हाँ, और हाँ. we have like it's a long time, 25 साल है हमारे 25 पास. साल का है पे ऑफ करने के लिए, तो बहुत अच्छा. 25 साल वाला. अच्छा, मे बी हाँ. शॉर्ट टर्म जो लोन का मैंने देखा था वो 10 इयर्स का पे ऑफ है उसका. नहीं 10 का नहीं होगा, 25 पढ़ा था मैंने. ओके.
Anyways, Luke De Jong. This guy has scored Luke 3 De Jong भी goals in बहुत 3 consecutive matches. Luke De Jong कैसे? Luke the Goat. Luke the Goat भाई. या उसकी जगह भी एक और है, बट आजकल वो प्लेयर गंदा खेल रहा है तो, बट एनीवे सुन लो, लुकाकू. वाह, ये जाएगा क्लिकबेट में, ये जोक. ठीक है, ये जोक जाएगा पक्का, कुछ भी हो भाई. लेकिन मतलब लुक डे रिडेम्पशन भाई कर दिया उसने बिल्कुल 2020 में. न्यू ईयर रेजोल्यूशन मार के बैठा भाई वो तो. जब उसने गोल मारा ना एल क्लासिको में, तो वो हेरा फेरी वाला डायलॉग नहीं था वो बाबू राव की कि मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला. मैं बोला भाई कैसे ये सही में गोल हो गया यार. मैं ऐसे स्टेज पे पहुंच गया था, मैं कह रहा था कि मुराटा भी आ जाए भाई, अब कि मुराटा आ जाए लुक डे जोंग की जगह, और मैं खुश हो रहा था. सोच भाई वो गोल इतना फ्लूक गोल था. वो फ्लूक गोल था भाई, फ्लूक लेकिन वो मुझे फ्लूक डे जोंग एकदम बट मुझे भाई बिल्कुल. मैं पहले ऐसे मैच देख रहा हूँ भाई, बिल्कुल आराम से बैठ के बिना किसी उम्मीद के कि भाई मार दिया, अब तो एक गोल मार दिया, मोरल डाउन हो गया टीम का, भाई हार जाएंगे, 2 गोल और खाएंगे. भाई उतने में जाके लुक डे जोंग भाई मार के आ गया. वो भी चल ठीक है गलती से ही सही. मैंने रिप्ले देखा तब मेरे को समझ आया कि कैसे मारा. गलती से पढ़ो कैसे ही पढ़ो, ल्यूक ने गोल मारा है एल क्लासिको में और उसने हमें लाइक लेवल पे ला दिया. This is enough for me. Like भाई वो भी ऊपर से मैड्रिड के वहां जितने हैं भाई, 3 games सफेद consecutively. सफेद कपड़े पहने हैं भाई, चिल्ला रहे थे ना वो सऊदी अरेबिया में. भाई लुक डे जोंग ने जाके चुप करा दिया सबको. Exactly यार, मतलब मेसी की याद आ गई मेरे को. नहीं देखो पता है ट्विटर पे मैंने एक चीज देखी थी, उसमें लोग बोल रहे थे कवर हिज हेड करके एक फोटो में, और हाँ, like जो यहाँ से पूरा बाल मेसी cover लग करो. रहा था. हाँ, एंड लाइक व्हेन ही वाज येलिंग और सेलिब्रेटिंग, तब वो ऐसा लग रहा था मेसी है भाई. छोड़ यार, मेसी बट 6 टॉपिक. सो ये सुन मैंने आज न्यूज़ पढ़ा, ट्विटर पे आया था कि ज़ावी हैज thought of replacing Luke in the transfer list with Depay. मैंने बोला यार ऐसा नहीं यार, ये तो बिल्कुल सही नहीं है यार. यार Depay is obviously a much better player than Luke any day. ठीक है, अब वो यार Depay is in. हाँ बोल तू बोल क्या बोल. लाइक ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि Depay hasn't contributed. He has, ठीक है लास्ट एक दो नहीं, चलो मानता हूँ मैं 5-6 मैचेस से Depay has not been in this form. He has not contributed at all. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाई उसको निकाल दोगे. 1 साल नहीं हुआ है वो आया यार. बट यार मेन चीज यही है मेरे हिसाब से, बार्सा ट्राइंग टू जनरेट एज मच एज दे कैन फ्रॉम प्लेयर सेल्स. अभी तभी डेस्ट को भी अभी बेचने का देख रहे हैं, एंड Depay को भी देख रहे हैं, एंड डेम्बले को भी मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड इसीलिए कर रहे हैं जिससे उसे बेच पाए. फ्री में जाने देना अच्छा नहीं होगा भाई. डेम्बले करेगा नहीं जितना ना करे. लेकिन तू ये बता, तुझे लगता है कि Depay को बेचना भी सही रहेगा? मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगेगा तो भाई मेरे हिसाब से नहीं बेचना चाहिए. नहीं बेचना. आई थिंक जैन में बेचना सही नहीं है, समर में बनता है यार. समर में बनता है अगर कोई हाई प्रोफाइल स्ट्राइकर आ रहा है यार. पता है मैं जैन में क्यों बेचना चाहूंगा उसको. अगर तेरे को पता है उसके कुछ फंड्स को अलॉट करने के लिए ना, जो सीजन का होता है, लाइक फुटबॉल का मैंने जितना सुना है ना, पेमेंट लाइक साल में 2 बार मिलता है. तो डेफर्ड पेमेंट जैसे तू बोल रहा है. हाँ, डेफर्ड पेमेंट कुछ सिस्टम चलता है उनका. तो जैसे पीके ने भी वो कुछ वो निकाला था ना ट्विटर पे कि मेरे को 2.8 कुछ मिला है किसी 4.8 मिल रहा है उसको. नहीं 2 पॉइंट कुछ जो भी है 2.8. लुइस कनूट वो रोनाल्डो कोमन का वो बहुत क्लोज बंदा था, तो वो न्यूज़ में जाके बोलता कि ये लोग these guys back something 20 million या something 24 कुछ बोल रहा था वो. हाँ पर ईयर. और उसके बाद पीके ने स्क्रीनशॉट डाल दिया कि मेरे को इतना मेरे को क्रेडिट हो क्या है. तो अब मेरा पॉइंट ये था कि भाई फुटबॉल प्लेयर्स को 2 उसमें साल में पेमेंट मिल रही है. एक दिसंबर के टाइम पे मिलता है जो कि ट्रांसफर विंडो का टाइम है, और दूसरा पेमेंट मिलता है उनको जब वो यार अगस्त और ये सब टाइम नहीं होता. अच्छा आई गेस वो सीजन एंड के टाइम पे मिलता होगा, सीजन एंड के टाइम पे, मई के अराउंड. हाँ, अगर तू ऐसे बोल रहा है 2 टाइम के पेमेंट वाला है तो मतलब इन शॉर्ट ट्रांसफर विंडो बंद होता है इनको पेमेंट मिलती है, मतलब आजू बाजू. हाँ, तो ये इनका सिस्टम रहता है. अब भाई मेरे हिसाब से अगर कोई ट्रांजैक्शन मान ले भाई, किसी डेस्ट को मान ले हमने 50 में बेच दिया, 50 मानने को भाई
मानने को तो मैं ये बोल रहा हूँ डेम्बेले को भाई 1 ये मिलियन वो में सब किया। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते कि राम है, कि वो राम गया 50 लड्डू ले वाटरमेलन, गया। अभी 24 वाटरमेलन का करेगा क्या राम? Joan had Serginho Dest. He went to Chelsea. हाँ He sold him for 50 million बस। तो अब मतलब मान एक ले limit टेस्ट को हमने होती है 50 में ना, बेच दिया। तो बिना मान पार लेना। कर रहे हो। हाँ हाँ चलो बोल 50 में बेच दिया, चल ठीक है। 50 का पूरा 50 भाई उस पे नहीं आएगा फंड में हमारे। 50 में से कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो होगा वो जाएगा इसमें प्लेयर के वेजेस पे पहले। हाँ उसके बाद जो लेट से 20 मिलियन चला गया वेजेस के लिए, ठीक है, वो जो 30 मिलियन होगा ना वो जाएगा फिर मैनेजमेंट के उसमें फंड्स में, और फिर भाई कट कटा के हाथ में आते आते तेरे एंड पे 15 कुछ ही बचेगा जो कि अगले सीजन के लिए रहेगा। और यूजुअली ऐसे नहीं होता कि एक साथ वो 50 की पेमेंट करते हैं। इट्स लाइक कि हाँ, वो जैसे फेरान installment- का हमने करा है, फेरान हमने का 4 साल में 55 डिवाइड किया। हाँ, सो दैट इज बेटर, क्योंकि जिस टीम पे शॉर्ट टर्म डेट ज्यादा होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, शॉर्ट टर्म पेमेंट्स करते रहते हैं, लॉन्ग टर्म में स्प्लिट में इसको स्प्रेड कर देते हैं ना, जिससे इजी पेमेंट हो जाए। और हमने मेसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यही करने की कोशिश करी थी। यही करने की कोशिश हाँ। की थी, बट वो तो चलो भाई क्या उमटीटी का यही तो करा है भाई, उसकी यार तो अगर बात ही मत कर। ग्रीजमन पहले हाथ निकल चुका होता ना तो ग्रीजमन या उमटीटी या कोई भी तो मे मेसी भी हो हो जाता। सकता था। बट यार कोई नहीं, अभी उसके बारे में बात नहीं करते यार। यार दिल दुख It जाएगा won't फिर। go, मतलब वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाएगा। भाई मैं तो समझ नहीं रहा हूँ यार, ओमटीटी को ज़ावी ऑब्वियसली प्लेइंग टाइम नहीं दे रहा है। There is no way he's gonna give him. वो क्यों पड़ा हुआ है यार, तू यार निकल he's भाई। open to a loan act, like देख, at best पहली loan चीज तो के लिए। ये आई थिंक कि उसका करियर तभी खत्म हो गया था जब उसने नी सर्जरी नहीं कराई। अब ही कैन नॉट प्ले फॉर अ गुड टीम, और वीक में 2 मैचेस भी हो गए ना, आई डोंट थिंक ही कैन प्ले 2 मैच एक वीक में, ही कांट। एंड और कोई If he wants to also, he won't 230,000 be. पर वीक नहीं देगा उसे। हाँ Let's say even if he does play two matches per week, वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देगा जो 2017 में एनरिके के अंडर दे रहा था। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो लेवल कभी दिखा ही नहीं उसके बाद से हमको। भाई उस उसने टाइम नी पे सर्जरी नहीं कराई ना वर्ल्ड कप की वजह से। वर्ल्ड कप की वजह, उस टाइम पे उसकी रेटिंग 87 थी फीफा में यार। आई वाज लाइक फीफा रेटिंग तो छोड़ो भाई, पता नहीं नहीं क्या हो भाई, गया। फिर भाई मेरे को भी याद है वो 87 जाके for a भाई लानव defender की is तरह very good. मार डालता था हाँ। वो एल क्लासिको में। हाँ अब वो है तो सांड भाई। रोनाल्डो को रेड कार्ड दिलाया था। हाँ भाई मेरे को याद है वो मैच जो है ना 3-2 वाला जिसमें मेसी ने से जर्सी निकाल के टांग दी। हाँ और फिर रोनाल्डो ने नहीं करा था। वो तो जस्ट आउट ऑफ स्पाइट उसने निकाला था वो। अभी तो वेलवर्डे में भी वो निकाला। मार्सेलो ने उसके कान में आके बोला वेलवर्डे था, तो तू भी क्या कर, करने की कोशिश वो- कर रहा था वो- जर्सी के साथ, ऐसे वो हवा जर्सी के डाल साथ रहा भाई था। ऐसे हवा मार रहा था उसको जर्सी में, पता नहीं क्या कर रहा था वो। तो भाई मैं तो मानता हूँ कि उमटीटी अगर किसी दिन अपना रेज्यूमे निकालेगा तो उसमें टॉप पॉइंट होगा कि रोनाल्डो को रेड कार्ड दिलाया मैंने अभी क्लासिको में। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ। बारसा के लिए खेल लिया भाई, वही बहुत बड़ी बात है इतने साल। बट लाइक बट ठीक है यार, उसको कूडोस देना हमको जहाँ चाहिए वहाँ देना चाहिए। he performed very good at a very top level for 2 years. टेलर टाइम ही वाज अ वेरी मैं सेलिब्रेटेड मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था पेज उसने कट किया ना इसलिए। ओह अच्छा, इसलिए बोल रहा तू। नहीं भाई, तो ही शुड हैव डन दिस। अबे हाँ, तूने वो वीडियो नहीं देखी यार? दीवार पे तूने वो वीडियो देखी कौन सा वाला? जिसमें ये सारे प्लेयर्स ट्रेन कर रहे थे एंड उमटीटी को थोड़ा आगे पुश करा पीके ने, एंड दे वर ऑल क्लैपिंग फॉर हिम बिकॉज़ ही टुक अ वेज कट। आई थिंक इट वाज बिकॉज़ ऑफ दैट। एंड उसके ऊपर क्या, हाँ ये अभी रियाद में हुआ था। हाँ दे हैड अ वीडियो। मैं तो उसकी जगह तो मैं तो चमाट मारता कि भाई तू एक साल पहले नहीं कर सकता था ये बात। वही वो पहले कर देता, सोच। मेसी रुक जाता भाई। नहीं यहाँ जाना ही नहीं, ये टेरिटरी है ही नहीं जाने वाली। नहीं भाई, मैं तो रो जाऊंगा इसके बारे में बात करके। बट या वो बंदा ब्लश कर रहा था वीडियो में, उसको पीके आके ऐसे पीठ मैंने पे थप्पी उमटीटी मार की सिर्फ रहे एक जो वीडियो उसके देखी ताली थी। हो जा रहे हैं। जब उसको फैंस ने धर दिया था ओ। गाड़ी के बाहर, हाँ, उसके बाद उतर के गया भाई था ना। 4 लौंडे थे भाई बिल्कुल ऐसे हट्टे से। उमटीटी भी ऑल दो भाई बीबीसी है, बट फिर भी 4 लौंडे एक बीबीसी क्या कर लिया भाई। वो बोलते हैं कि निकल जाए यहाँ से, ये उन्होंने सीधा ये किया उसको। तो भाई उमटीटी कुछ कर नहीं सकता। कुछ बोला था ना कि can't you be more respectable, ऐसे उमटीटी कुछ। बोलता है डू यू गाइस इवन नो व्हाट रिस्पेक्ट इज। हाँ यही बोला था। यस भाई वो और करता क्या, वो थोड़ी मारने चला जाता, मार खा के आ जाता वो। हाँ यार, अगर मैं तो मानता हूँ कि
अगर उस सिचुएशन में मैं उन 4 लौंडों में से होता ना और मेरे को ओमटीटी अगर बोलता कि डू यू नो गाइस नो व्हाट रिस्पेक्ट इज, मैं जूता निकालता, देता मुंह पे चपाड़ कि तू पहले पैसे कम कर फिर रिस्पेक्ट की बात करियो। पैसे कम करनी भाई, तू कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके हाँ निकाल। तू निकल, अरे तू जा रे, वो वाला सीन है। अबे हाँ, वो अक्षय कुमार वाला वो यार, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हाँ जा क्या गुंडा बनेगा रे तू? ओ सॉरी, क्या फुटबॉलर बनेगा रे तू? गुंडा ही है भाई वो। एनीवेज चलो डू आगे। यू गाइस थिंक कि ग्रीजमान का ट्रिगर करेगी एथलेटिको 50 मिलियन वाला? भाई कर ले यार। एंड वो भी 2 सीजन के बाद है वो। मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, नहीं करेगी। नहीं, एक सेकंड, हम वो भूल रहे हैं कि सुआरेज नेक्स्ट सीजन खत्म उसका कॉन्ट्रैक्ट। यस, मे बी कर ले। ही इज लीविंग एंड जोआ फेलिक्स इज बीइंग लिंक्ड टू सिटी एंड आई थिंक ही इज परफेक्ट फॉर सिटी। यार जोआ फेलिक्स ने ना सबसे बड़ी गलती वही करी थी, एथलेटिको में आ गया था वो। एथलेटिको जैसी टीम में जाके सही में उसको क्योंकि वो बंदा भाई एकदम, उसका प्रोफाइल ही डिफरेंट है। वो भाई पोजीशन भी हटा दे एक बार, वो बहुत क्रिएटिव आदमी है। भाई तुम किसके साथ खेल रहे हो भाई? लोडी के साथ खेल रहे हो तुम भाई, पूरा पीछे चिपक के बैठते हैं वो लोग अपने, उनका बस चले भाई, वो गोल पे चिपक के जिस टाइम आई थिंक एथलेटिको हैड दैट ना कि मतलब थोड़ी रेपुटेशन थी उनकी, हमेशा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उनके आगे रहते थे एंड पीछे मिरांडा गोर्डन टाइप सारे गावी बैंड। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब जिस टाइम जो फेलिक्स ने एथलेटिको ज्वाइन किया था, एट दैट टाइम एथलेटिको वाज द मोस्ट डिफेंसिव स्क्वाड इन द होल ऑफ ला लीगा। ठीक है, मोस्ट डिफेंसिव स्क्वाड। वो बहुत ज्यादा पीछे फॉल बैक करते थे एंड दे वर प्रीटी मच टीम्स टू प्ले प्रीटी मच डिफेंसिव। पाक द बस वाला ही था उनका सिस्टम। हाँ ठीक है, जो अभी इस सीजन ग्रेनाडा कर रहे, दे आर वेरी डिफेंसिव। ग्रेनाडा इज वेरी, ग्रेनाडा बाय द वे फन फैक्ट कौन मैनेज कर रहा है याद है? गार्सिया ना? मैं तो नहीं, रोपोर। अबे एनरिके का एक एजेंट नहीं था जिसने, हाँ एजेंट नहीं, एनरिके का एजेंट नहीं, सॉरी उसका असिस्टेंट असिस्टेंट कुछ तू मैं हो गई थी। हाँ देखो पता क्या हुआ था, एनरिके की बेटी की जब डेथ हुई थी तो वो थोड़ा स्टेप डाउन किया था ना। तो ये रॉबर्ट गार्सिया या रॉबर्ट कुछ तो नाम है भाई, याद नहीं। आई नो मोरेनो है या कुछ है वो 2015 में बारसा में भी था एंड जावी के साथ वो चैंपियंस लीग वगैरह जीता है। तभी एल्वेस और ये चावी जाके भाई ऐसे गले वाले मिल रहे हैं जैसे पिछले। अच्छा हाँ एल्वेस जाके मिल तो रहा था, मैंने देखा गले मिल रहा था वो। वही उस टाइम पे यही हुआ था कि मतलब वो जैसे ही लुइस एनरिके कुछ टाइम के लिए गया तो उसके पीठ पीछे ये गया और उसने बोला कि आई विल टेक द चार्ज, आई विल बी स्पेन्स मैनेजर। और इस वजह से एनरिके ने वो साफ आके बोल दिया कि आई डू नॉट अप्रिशिएट दैट, ही वेंट बिहाइंड माय बैक एंड अप्रोच्ड द एफए एंड ही वांटेड टू बी द मेन कोच। और वैसे ग्रेनाडा वाला मैच देखेंगे तो भाई एनरिके लेवल तो नहीं है भाई। नहीं बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एनरिके का बस चले भाई, वो ग्रेनाडा के साथ भाई 2015 जैसा खिला देगा। देखा एल क्लासिको के एनरिके वाज देयर, ही वाज देयर प्रेजेंट। अरे हाँ यार, एनरिके और अपने लोगों को लेके आया था वो। हाँ, आई थिंक उनको इनविटेशन तो मिलेगा ही क्योंकि यार वो आरएफईएफ का है तो फिर वो लोग तो बुलाएंगे हमें। नहीं एनरिके बेसिकली जवान टट्टों को उठा भाई लेने आया था वो देखने आया था कि एपडे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एपडे की स्पेन कॉलम। हाँ तो एपडे कैसे खेल रहा है एंड लाइक विल बी फिट ऑन। एपडे की बात कर रहे हैं ना, तो एक बंदे का नाम पता है, लाइक गलती होगी अगर हम मेंशन नहीं करेंगे, ऑल्दो उसने अभी भाई बारसा छोड़ दिया है बट स्टिल नहीं, उसने बार्टोमियो के अंडर भाई इतना कमाल काम किया यार। रामोन प्लानस। अच्छा प्लानस, हां भाई मैं प्लेयर ही वही तो लेके आया अपडे भाई, वो पेड्री को लेके आया, वो अपडे को लेके आया और इसको भी आई थिंक डेमीर में भी उसका ही हाथ था, ऑल्दो डेमीर चला नहीं। आई गेस अराउखो को भी वही लेके आया। अराउखो को भी वही लेके, भाई बहुत क्रूशियल प्लेयर्स को वो लेके आया। वो लेके आया बट लाइक उसको पता नहीं यार क्यों छोड़ दिया, मे बी वो एसोसिएट नहीं करना चाहता था अपने आप को लापोर्टा के साथ एंड he wanted new challenges। ये है उनका, उसको ये लगा था कि उसने बारसा में अपना जॉब कर लिया। नहीं चैलेंज की बात नहीं थी, उसका ये बिलीफ था कि लाइक उसका जो प्रोजेक्ट था उसने बारसा में जितना कर सकता था वो कर दिया उसने। उसने कंप्लीट कर दिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर इट टू मूव। बट अगर कुछ चैलेंज चाहिए तो एरा के एरा मीनिंग वो इतनी सारी डेवलपमेंट कर पाया अच्छे प्लेयर्स के साथ। इट वाज मतलब भाई तेरे को ये पता है, आपके को हमने हरक्यूलिस करके कोई क्लब है आई थिंक सेकंड डिवीजन में या थर्ड में कहीं तो हां सेकंड डिवीजन भाई वो 2 मिलियन मांग रहे थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हम 1 दे रहे थे उनको पहले।
वो किसी एक का अचानक ट्रांसफर जो हुआ था ना, उसकी वजह से थोड़ी ऐसे आ गए थे, पता नहीं किसका ट्रांसफर। अरे मुरीबा का, इलाई मुरीबा। हाँ, ये कुत्ता कमीना सांप, मैं तो भूल गया था इसके बारे में। ये तो बिल्कुल ऑब्लिवियन में चला गया भाई। लाइप्जिग ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया कि मोरिबा वांट्स टू जॉइन द बार्सिलोना, लाइक जॉइन बैक टू बार्सिलोना। मतलब भाई दूर रहो, अब तुम दूर रहो सही में, फक ऑफ लिटरली। सही क्या नाम है वहाँ बुला रहे थे ना जर्मनी में, बहुत लोड़ा चुसवाने। लेप्जिग में एक और प्लेयर था, वो अयाक्स वापस जा रहा है, वो याद है, एक ब्रॉबी करके, वो भी वापस चले गया। आई थिंक वहाँ ये जो इतने जो मनी मतलब फ्यूल क्लब्स होते ना ऐसे, वो हाँ, जितने तो उन सारे क्लब्स में यूथ प्लेयर्स को इतना चांस नहीं मिलता। इवन लुक एट पीएसजी, ज़ावी सिमंस, उसको भी आना है वापस, बिकॉज़ ही इज नॉट इवन गेटिंग। भाई मेरे को पता है दिल को कितना सुकून मिला वो सुन के। क्या इतना पीआर ऐसे स्टंट करके निकला था बार्सिलोना से वो, कि तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, मैं भाई जुदा नहीं हो पाऊंगा तुमसे, ये देश मेरा है, ये वो पता नहीं क्या क्या भाई ड्रामे उसने किए थे इंस्टा पे। पीएसजी गया ऑब्वियसली भाई, यहाँ भाई बारसा के भाई जवान टट्टे भाई ऐसे फर्स्ट टीम पे निकले जा रहे हैं। ये बंदा ये तो भाई कुछ नहीं कर रहा। वहाँ भाई एक और भाई कोई बीबीसी प्लेयर है वहाँ, वो और चावी सिमंस अब जाके इनको थोड़ा सा फर्स्ट टीम का राइट बैक डाकबा नहीं, कोई कुछ तो भाई नाम पता नहीं बोला जाता है नहीं मुझसे फ्रेंच में। वैसे ही भाई ऐसा लगता, अजीब सी लैंग्वेज है यार, समझ नहीं आती मुझे। अभी एक और गया था पीएसजी, वो वापस आ गया बारसा, देखा तूने? बारसा भी ने अभी वापस किया, युवेनाइल फाबियो ब्लांको तो फ्रैंकफर्ट से आया था, एक काइस रुइस अतिल, हाँ काय वो कुछ करके काइस रुइस अतिल। बस अपने पॉडकास्ट का नाम यही होगा कि ये सब नाम हमसे लिया नहीं जाता, पॉडकास्ट का नाम। तो मैं जो बोल रहा था कि अब पीएसजी ने बस ऐसे लाइक होल्ड कर रखा है सारे टैलेंट्स को। वो पता है कुछ उनको बस लाइक उनका पता है क्या सिस्टम है, मेरे को एटलीस्ट मेरे को तो यही लगता है कि भाई टैलेंट बनाने की तो औकात है नहीं हमारी। वो तो भाई बेस्ट जो टैलेंट है पैसे फेंक दो, इधर रख लो। नहीं रख लो, खिलाएंगे नहीं, बट उनको हमारे पास ही रखो ताकि दूसरों के में वहां कम से कम फ्लरिश तो ना करें। इनके पास वो अच्छे प्लेयर्स थे यार, ये जो माइनन है, वो देखा है तूने? एसी मिलान का कीपर क्या, कैसे वो उसका था क्या, माइगनन करके कुछ है ना, वो उससे लियोन से गया था। वो पीएसजी एकेडमी का है। वो इतना अच्छा कीपर उन्होंने जाने दिया है उसको, और उसके बाद उसको देख ले, सिर्फ एक किम्पेम्बे खेल रहा है शायद उनकी एकेडमी का जो है। हाँ, बस वही है किम्पेम्बे भाई। बिल्कुल ऐसा लगता है कहीं भाई रात को फिर नाइट ड्यूटी करता है वो क्लब के बाहर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब फर्रान टोरेस आ गया है हमारे पास, वी हैव फर्रान टोरेस, was the chances of Danny Olmo coming to Barca now from Leipzig? Zero. I don't think he can play anymore. क्यों पता है? गावी, पेड्री सब आ गए। नहीं, गावी पेड्री की भी बात नहीं है। एक तू चीज सोच के देख भाई, डैनी ओल्मो ऑल्दो ठीक है अटैकिंग मिडफील्डर है वो, लाइक वो उसका प्रेफर्ड पोजीशन तो कैम रहेगा, ठीक है, बट उसको खिलाते विंग्स में वो इसलिए क्योंकि वो वर्सेटाइल। तुझको लगता है कि आप उसको जगह मिलेगी स्क्वाड में? फ्रैंकी डियोंग को भाई मुश्किल हो रही है भाई, ऑल्मो को बहुत दूर। अगर ऑल्मो को लेते हैं, ऑल्मो इज मोर लाइक अ इन्वर्टेड विंगर, तो फिर वो जैसे 4-1-2-1-2 जो नैरो खेलते हैं उसमें इन्वर्टेड खेलता है। ही कैन नॉट बी फार वाइड वाला विंगर एकदम जो टच लाइन से चिपक के खेले। ही डजंट हैव दैट स्पीड ना। चावी का सिस्टम वो नहीं है, बॉल मास्टरी प्लेयर। चावी का सिस्टम ही नहीं है इन्वर्टेड वाला। चावी को भाई बिल्कुल ऐसे चाहिए जो बिल्कुल वो क्या भाई जो बड़वे भाई बिल्कुल फ्लैंक्स पे कुत्ते की तरह दौड़ते रहे। हाँ, he needs someone like Joao Cancelo and someone at left back like 2012 का जॉर्डी अल्बा, पेड्रो। मतलब हाँ, अभी मेरे हिसाब से देखो पता है क्यों खेल रहे हो इतने वाइड विंगर से? आई थिंक इट्स बिकॉज़ हमारे फुल बैक्स इतने वो नहीं है, इतना नहीं कर सकते। तू एक चीज सोच के देखना, आपडे और जॉर्डी अल्बा स्पेशली क्यों नहीं थक रहा मैचेस में इतना? क्योंकि पीछे खड़ा रहता है। हाँ, क्योंकि भाई वो उसका थोड़ा सा लाइन पीछे कर दिया। पहले क्या होता था, जो पुराना हमारा सिस्टम था अटैक में, मेसी को ढूंढो, सुआरेस तो भाई बीच में रहेगा, मेसी राइट से भाई ऑब्वियसली वो ड्रिफ्ट करता था सेंट्रली, और एक था ग्रीजमैन नहीं तो कोटिन्हो भाई। ये दोनों एक तो ऐसी वाहियात स्पोर्टिंग साइनिंग्स थी, दोनों भाई सेंट्रल ड्रिफ्ट करते थे। तो हमारे दोनों भाई जो विंग्स हैं वो तो खाली पड़े हैं।
तो भाई विंग्स को कवर करने के लिए कोई तो चाहिए। तो भाई न्यूमेरिकल वो ओवरलोड करने के लिए क्या भाई जो हमारे राइट बैक और लेफ्ट बैक हैं उन्हीं को आगे जाना पड़ता था। तो एल्बा बेसिकली उसको जितना दौड़ना चाहिए उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा दौड़ रहा होता। हाँ, ट्रू। तो इसीलिए थका पड़ा होता था वो हर मैच के बाद। बट लाइक एल्बा का तब भी यार बनता था कि वो करे, क्योंकि उसमें वो एबिलिटी थी। एंड स्टिल वो यस्टरडे एल क्लासिको में उसी का असिस्ट था। थोड़ा सा आगे आता है, वो फाटी एक क्रॉस डालता है, असिस्ट फाती वाला गोल उसी का तो असिस्ट था। बस मैं वही कह रहा हूँ यार, जैसे पेप तूने देखा है, पेप ज़ावी इन सब की टीम्स में फुल बैक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड आई थिंक उसके पास जोआओ कैंसेलो है, वॉकर है, इन सब की वजह से पेप गार्डियोला भी अच्छा खेलता है। ज़ावी को भी बहुत अच्छे फुल बैक्स मिल गए तो हमारी पूरी टीम बदल जाएगी। भाई मेरे ख्याल से ना सबसे ज्यादा रीइंफोर्समेंट की जरूरत ही बारसा को अभी डिफेंस में। बारसा को, हाँ ट्रू। मैं भी ये अटैक में कर लेंगे कुछ भी करके, कर लेंगे नहीं, वी हैव अ गुड अटैक, ठीक है, वी लिटरली हैव अ गुड अटैक, वी हैव अ गुड मिडफील्ड एज वेल भाई। डिफेंस तो भाई ठीक बहुत करना है, हमें बस डिफेंस ठीक करना है। डिफेंस में बस एक बंदे से मेरे को बहुत प्यार है भाई, अराओ, वो तो भाई, और एरिक गार्सिया। अराओ को ऐसे हीरा भाई निकल के आ गया गलती से हमारे हाथ से ज्यादा मेरे को ना उसको जाने नहीं देना बिल्कुल। मुझे एरिक गार्सिया से ज्यादा मिगुएंजा पसंद है यार, क्योंकि मिगुएंजा, हाँ, I think he'll be sold भाई। I don't think वो रहेगा। I know, but एरिक गार्सिया लाइक उसके लक्षण वही हैं। हाँ, लेकिन मेरे को एरिक गार्सिया भी कभी मतलब इतना फ्लरिश करते हुए नहीं दिखा। एरिक गार्सिया का पता है रीजन क्या है? वो यार तूने बुस्केट्स को कभी तेरे हिसाब से बहुत ऐसे फाड़ मैच करते हुए देखा है? हाँ, विजुअली तूने तेरे को देख के लग गया वो, अबे वो ऐसा आदमी है ना जो लाइक बिहाइंड द सीन्स काम करता है। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ। वो गार्सिया का भी वही सीन है। गार्सिया और उसको देख भाई, उसकी जो डीप, मतलब वो डीप रह के जो पासेस थ्रेड करता है बीच से, that is very essential for a possession based attacking team which plays a high line, and I think Eric Garcia would be very beneficial for future. I think Garcia might not be the best in one on one, बट अब दुनिया भाई 1-on-1 ही देखती है ना, उनको क्या लेमैन टर्म्स में डिफेंस मतलब ये लगता है ना, हाँ भाई 1-on-1 भाई मैंने बॉल दुनिया वो हो गया, ये हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, हम जब हाईलाइन खेल रहे हैं ना, तो 1-on-1 के चांसेस एग्जैक्टली सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा। अब जैसे तूने लास्ट देखा था ये जो विनिशियस वाला गोल हुआ था, अराओहो लिटरली थ्रू हिमसेल्फ ऑनटू द फील्ड टू स्टॉप इट, वो 1-on-1 ही था। इन सब सिचुएशन में मुझे लगता है मिगुएंजा he literally has performed 1-on-1 much better than Eric Garcia has. बट यार कुछ तो होगा ना, जो उसको कोमन ने भी सेंटर बैक नहीं खिलाया, ज़ावी भी उसे सेंटर बैक नहीं खिलाना चाहता। I don't think he has that ability to play at the center back position. और तू एक चीज नोटिस करके देख, मिंगेसा लाइक आउट ऑफ नोवेयर आया था स्क्वाड में। वो भी इसीलिए आया क्योंकि मजबूरी हो गई थी। Exactly. And he's not that young बे, अभी भी वो कुछ 22 का 21 कुछ है वो। हाँ, एरिक गार्सिया just turned 20. हाँ, he is quite young. वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो प्लेयर अभी भी उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एंड टाइम है डेवलप होने के लिए। देख मिंगेसा अच्छा है नो डाउट, बट वो लाइक रोटेशनल प्लेयर के हिसाब से अच्छा है। हाँ, he's not first, he's not a like everyday, he's not crucial role के हिसाब से अच्छा वाला टाइप। स्टार्टिंग 11 का प्लेयर नहीं है वो। जब स्क्वाड रोटेट होगी he'll come and he'll play. अब तो वैसे देखना, ऐसे तो भाई लॉन्गले भी रोटेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, वो स्क्वाड प्लेयर ही अच्छा है लॉन्गले। हाँ, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर लॉन्गले को भी नहीं बेचा, पर उमतीती को बेच दो और एक और अच्छा सेंटर बैक ले लो भाई। मैं तो बस विनय की तरफ देखा कि क्या बोल गया ये क्या बोल लॉन्गले भाई, मेरे को पता नहीं, ही इज अ गुड स्क्वाड प्लेयर, पर उसके दिमाग में ना ज्यादा जोर डालोगे ना, उसको वीक में 2 बार ही खिला दिया तो वो ओवरलोड हो जाता है, उस पे गुस्से नहीं होता। जब भी मैच आता है ना तो मेरे को टेक्स्ट, अब गलती से लॉन्गले को सब इन कर दिया भाई, उसका सीधा टेक्स्ट आएगा, ये भाई ये किस टट्टी को लेके आ गए। मैं तो भाई सीधा गाली करता हूँ कि ये तो है भाई गोबर गणेश नहीं बोलते ठीक है, उस पे ज्यादा लोड डाल दो। ये ट्यूबलाइट देखिए सलमान खान वाली, वो वाला सीन है, उसके बाद ज्यादा पढ़ाओगे तो वो फेल मार देगा पक्का। वैसा भाई मैं कह रहा हूँ तभी वो स्क्वाड ठीक है, उसको लेके आओ आखिर के 20 मिनट के लिए, कभी मुश्किल से कोपा डेल रे का एक मैच खिला दो टाइप, ये सब। Like I think he cracks under pressure a lot easily. हाँ, he does. उसको जब थोड़ा सा ऐसे एंड का दे दो ना, वो कर लेता मैनेज। अगेंस्ट बायर्न मेरे को याद है, बायर्न के अगेंस्ट मेरे हिसाब से डिफेंस में वो
हमारी पूरी हाँ भाई। मिजरेबल डिफेंस में सबसे अच्छा वही खेला था आई थिंक। मैं हैरान था भाई उस दिन। मैच में मैंने विनय को बोला भी था कि भाई लॉन्गले बहुत अच्छा खेला वो पहली बार मैं सुन रहा था। he didn't fuck up मैं उसको ये वही तो बोला मैं कि कह ये अबे कैसे उसका हो गया? दिमाग उस वेवलेंथ पे नहीं चलता। देख एक वो चीज अलग उसने कुछ जरूर और ही करी, सोचता है। बट ठीक है उस एक मिस्टेक भाई, एक मिस्टेक तो भाई हम फिर अराउखो के भी पकड़ सकते हैं इसमें हाँ। एल क्लासिको में। लॉन्गले ने उस टाइम एक मिस्टेक बस वो करी थी, मुलर कूदा, वो कूदा ही नहीं। हाँ वो खुद है। हाँ। और तेरे को जो दो सॉरी ऑब्वियसली वो तो नहीं पसंद लॉन्गले, बट मिंगेसा जो पसंद है, मिंगेसा खड़ा होके ऊपर ताड़ रहा है कि मुलर अब मुलर भाई जब वो मुलर यार हवा अभी में भी होता है। experience नहीं है यार, बच्चा क्या ही बोल player सकते हैं। है यार, वो तब हाँ तो। he doesn't have experience and I think लॉन्गले जो सेविया के लिए खेल चुका है पहले और बार्सा के लिए इतने टाइम से खेल रहा है, उसको अरे समझ भाई जाना he's been चाहिए। a World Cup winning squad longly. हम्म। Anyway, मैं जो बोल रहा था जो विनिशियस वाला फर्स्ट गोल हुआ था उसमें भी पता है अराओ की गलती तो थी नहीं, वो थी बुस्केट्स की गलती। बुस्केट्स स्लिप कर हाँ, गया था, ठीक है। उसके बाद बट इट वर लुकिंग फॉर अ फुल ऑन काउंटर अटैक, वो तो सच बात है। एंड द ऑड्स वर लिटरली 4-2, 2 बारसा डिफेंडर्स थे और 4 मैड्रिड के प्लेयर्स थे, कहीं ना कहीं से गोल आना पक्का था, वो तो श्योर था। वो छोड़ दे इसमें कुछ भाई वो तो पहले उसमें ही देख रहा था कि भाई सेंसियो आके लाइक क्रॉस मार के निकाल रहा है, विनिशियस को उसमें टर स्टेगन को मार के दे रहा है, वो देख रहा था कि मारेंगे पहले वही। एग्जैक्टली। बट इस एल क्लासिको मैच में एब्डे और डेम्बेले ने जो ड्रिबल किया है ना, और जिस तरीके से उन्होंने पासेस निकाले मतलब अब गोल पोस्ट के सामने जाके थिबॉट कर्टोस के सामने, इट वाज अमेजिंग। इवन एब्डे वाज प्रेसिंग ऑन कर्टोस। भाई कर्टोस डजंट लाइक टू बी प्रेस्ड, और वो एब्डे तब प्रेस कर रहा था। बहुत गंदा फिर उसमें लॉन्ग पास दे रहा था जब कोर्टवा को प्रेस मार रहे थे ना, वो सीधा सारे लॉन्ग बॉल्स विनिशियस के टुवर्ड्स डाल होगा ये। बट मेरे हिसाब से डेम्बेले बहुत अच्छा खेला, फिनिशिंग हटा दो 2 मिनट अच्छा खेला, बट ही स्टिल प्लेज लाइक अ 18 ईयर ओल्ड जिसकी डिसीजन मेकिंग कहीं से भी कुछ भी रैंडम होती है। मैं बोल रहा हूँ जो विनिशियस के साथ भाई वो तो लोग बोलते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसका, जो भी चेंजेस वो खुद के लिए अनप्रेडिक्टेबल है भाई, उसको खुद नहीं पता मैं अभी क्या कर दूंगा। मुझे पता है कब मेरे को रियलाइज हुआ कि डेम्बेले मैन ऑफ द मैच कंटेंडर्स में से हो सकता है। लाइक मैच में तेरे को वो वाला सीन याद है जब आखिरी में डेम्बेले ने एक कोर्टवा को रख के भाई एक शूट मार के दे दिया था, जब उसने लिटरली दोनों हाथ से ऐसे रोका कोर्टवा ने, तब भी बॉल लग के साइड में गई थी और कॉर्नर मिला था ना उसका कॉर्नर मिला था, बट भाई वो इतना क्लोज कॉल था, वो गोल के अंदर जा सकती थी। बट लाइक यार अब डेम्बेले को वही फॉल्टेड, फिर दो डेम्बेले ने एक शॉट मारा वो मिस हुआ, फिर दूसरा शॉट मारा किसी और ने वो भी मिस हुआ, ऑफ टारगेट था, वो अलग बात है। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो विनिशियस जूनियर ने पिछले सीजन में किया है, जो अभिनव बोल रहा था कि चेंज हिज डाइट, तू बोल रहा था चेंज हिज फिजिशियन डाइट, एंड दे वर लाइक मच मोर कंसंट्रेटिंग ऑन हिज डिसीजन मेकिंग एंड फिनिशिंग। द सेम थिंग शुड बी डन विद डेम्बेले दिस सीजन। पर ये भाई ये चीज उसको खुद आनी चाहिए ना। हां वही तो, विनिशियस ने खुद ये डिसीजन लिया था कि मेरे को चाहिए ये। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखो पता है जब ये क्या है वो स्टेट रेने करके रेन मैं तो रेनेस बोलता हूं यार, मैं इसीलिए मेरे को फ्रेंच नहीं पसंद भाई। आधे टाइम बात करते हैं ऐसा लगता है खांसी निकाल रही है। तो मतलब यही था कि जब वो रेन में था तो उधर के मैनेजर ने उसको कॉल करा कि व्हाई डिडंट यू शो अप टुडे फॉर द ट्रेनिंग करके, and he said I've had enough of the football, I'm going to my home। और वो अपनी मॉम के पास चले गया था फिर से, जैसे अफ्रीका में गई। he went there, छोड़ा कि मैंने बोलता कि मैंने काफी फुटबॉल खेल लिया, अब मैं जा रहा हूँ, बेंचो चले गया छोड़ के। एंड ये उसकी वो थी प्रोफेशनलिज्म। और उसका याद है तेरे को सागा जो बोरुसिया के लिए वो बोरुसिया के लिए बारसा में निकलने के लिए उसने किया, वो ये अभी भी तो वही कर रहा है, अभी भी तो वही कर रहा था वो। अभी तो तुझे कह रहा हूँ कि he is not dependable, he is not professional at all। एंड उसका वो वीडियो गेम वाला, उसकी तो बहुत गांड लेते थे। जो ग्रीजमैन जितना भी वीडियो गेम खेलते हैं पर गेम में तो आता था। ये क्या रीजन हुआ कि भाई रात को गेम खेल रहा था तो सुबह ट्रेनिंग पे नहीं आया? बच्चा है क्या? एंड अगर वीडियो गेम खेल भी रहे हो तो जोटा जैसे खेलो ना भाई। जोटा वर्ल्ड सेमीफाइनल्स में पहुंचा ई फुटबॉल के, एंड ही हैड टू, उसको छोड़ना पड़ा। उसने बोला कि सॉरी गाइस, आई हैव टू प्ले अ रियल मैच नाउ, सो आई लीव। मैं छोड़ के जा रहा हूँ। That is understandable। और बहन जो इसको देखो, ये बारसा के लिए खेल सकता है बट नो, घर पे रात को लेट सोएगा, ट्रेनिंग पे लेट आएगा। अबे बहुत वो लाइक ऐसे कंप्लेसेंसी सी है मतलब डेम्बेले की। हाँ, because he's getting paid enough।
तो उसको क्या दिक्कत कितने है? पैसे मिल रहे हैं भाई 21 साल की उम्र में भाई। भाई हैरानी की बात वो नहीं थी कि उसको वो इंजर वेंजर रहता है। हाँ अरे उसको इंजर रहने किसी के पैसे टीममेट मिल को रहे थे पता नहीं था यार। उसकी और शादी हो क्या? गई। अरे किसी को उसने नहीं बुलाया। उसके दोस्तों को नहीं पता था भाई उसकी एल शादी हो गई। क्लासिको में मेरे को बिना टेक्स्ट करता है कि यार डेम्बेले अच्छा खेल रहा है। मैंने बोला हाँ ना, शादी तो हो गई उसकी। तो मैंने बोला सही बात है यार, इसको मिल रही है पुसी पावर। शाबाश। नहीं मैंने शुद्ध हिंदी में बोला था। चल मैं तो भाई अब तू नहीं बोलेगा? भाई अपलोड करना है प्लीज, तो कभी किसी ने देख लिया ना। मैंने बोला दिवार्थी को, वो कहता है भाई उसको बहुत अच्छे से मिल रही है। मैंने बोला नहीं भाई चूत पोषण मिल रहा है उसको। बस भाई ये अब ये हमारा वीडियो होएगा रिपोर्ट फेमिनिज्म के अंदर। अब लड़कियां करेंगी इस पे भाई, खत्म भाई, बर्बाद। चलो बॉयज लॉकर रूम। हाँ बॉयज ये कट कर दियो। ये कट कर दियो भाई पावर साइंस को। अभी आई हैड अ फोटो, मेरे को ट्विटर पे एक फोटो मिल रही है डेम्बेले की, जो बंदी बंदी नहीं भाई, बीवी। तब वो बंदी कौन सी डेम्बेले की एक फोटो मिली थी जिससे उसकी अभी शादी हुई है, वो बंदी बिकिनी में थी उसके साथ, एंड लाइक हाँ, एंड दे गॉट मैरिड इन अ फुल मुस्लिम ट्रेडिशनल। हाँ तो फिर वो थोड़ा शॉकिंग था देखना। भाई मुझे बहुत वियर्ड लगा। लाइक भाई मेरे को मतलब बात हजम सी नहीं हुई डेम्बेले शादी यार। वहाँ एक बारसा प्लेयर नहीं था यार उसकी शादी में। वो दिखा रहा है ना कि वो कितना ही कनेक्टेड है क्लब से। उसको बस मतलब ठीक है अनदर डे एट लाइक वर्क, उसका वही एटीट्यूड है। उसको कोई मतलब कमिटमेंट नहीं है। इसका मेरे को ऐसा लगता है वैसा है कि बेंचो बस शाम को जाके खेल लो पार्क में जाके, पार्क में खेल के आ गए अपना कर लो। और बेंचो पार्क में खेलने के उसको 200 या 150,000 250 कुछ मिलता है उनको। 250 के नहीं उमतीती से कम है उसको उमतीती से कम मिलते हैं। उमतीती को 230 मिलते हैं ना, कम हो गया। और नहीं उसका 20 पहले था, एंड लाइक डेम्बेले को अभी कितना 10 कुछ मिल रहा है, एंड ही इज डिमांडिंग कितना 40 मिल रहा है। 40 मिल रहा था भाई, जहाँ पे 35 तो मेसी और नेमार को मिल रहा था यार। लाइक आई सॉ अ मीम कि टू अनलॉक शूटिंग पे 40। ये वो स्किल्स नहीं होते गेम में, स्किल्स होते हैं ना वो वाला। भाई क्या सीन था वो, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। उसके एजेंट को अंदर से ऐसे घिन नहीं आई थी कि भाई मतलब किस मुंह से मैं जाके मांगू इसके लिए 40। उसका एजेंट अभी भी समझता है कि ही कैन विन बैलन डॉर। इट्स लाइक आंद्रे गोमेज जब बारसा आया था उसमें था बैलन डॉर क्लॉज ना भाई। मतलब डेम्बेले का एजेंट इतना कॉन्फिडेंट है यार उस पे डेम्बेले पे कि भाई हमारे लिए तो भाई ऐसा म्यूनिक सब लाइन लगा के खड़े हैं, हम बैलन डॉर जीतेंगे, तुम देख लो भाई। 40 दे दो हम जाएगा ना, उसकी हड्डियां टूटी पड़ी रहेंगी, ठीक है। वो चमत्कार खाएगा हर रोज मैच में जाने से पहले। बेंचो मैं नहीं चाहता है डेम्बेले कहीं और जाए, फ्लरिश करे, बिकॉज इट वुड बी टू हार्ट ब्रेकिंग टू सी दैट, बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट था और हम उसे चैनल करके एक बेटर प्लेयर नहीं बना पाए। एंड आई थिंक अब वो गलत डिसीजन लेता ही रहे और न्यूकासल चल जाए, मजा आएगा। बायर्न वाइन किसी अच्छे क्लब में, बर्नली भेजो, बर्नली मैकनील उसे डिस्प्लेस कर देगा। नॉर्विच चले जाए भाई, कहीं चले जाए, नॉर्विच चले जाए। एनीवेज मैं बात कर रहा था अभी टॉरेस डेब्यू। ही प्लेड 45 मिनट्स। मुझे कुछ लाइक ठीक है, आई डोंट, हां बट ठीक है यार, अगर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई डेविड विया प्राइम वाला वो पकड़ लेगा फॉर्म। आई रियली डोंट वांट टू जंप इनटू कंक्लूजंस राइट नाउ। पहला मैच है बंदे का, इट्स लाइक उसने barely कुछ ट्रेनिंग करी है अभी, मतलब स्क्वाड के साथ नहीं, जस्ट केम आउट ऑफ कोविड से निकला, उसने ट्रेनिंग करी एंड देन ही प्लेड। आई डोंट एक्सपेक्ट मच। उसके 2-3 स्प्रिंट्स काफी अच्छे थे, जिसमें एक उसने शूट किया था बट वो ऑफ टारगेट था, बट ठीक है यार, इट्स फाइन है ना। यार एक चीज थी बस, वो उसको लाइक बॉल को ड्रिबल नहीं कर पा रहा था अच्छे से। वो मे बी मेरे हिसाब से वो वजह से हो सकता है, ठीक है। आई थिंक उसमें मैच फिटनेस इतनी नहीं थी। जावी बस चाहता था कि कोई हो जो बॉल उस एरिया में चला पाए, विंग पे खड़े रह के ही चला पाए, थोड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट बैक वो बॉल को लाइक उस विंग को बिल्कुल खाली ना छोड़ दे कोई, आई गेस। हां, बिकॉज़ अगर फिर लेफ्ट बैक भी उनका खाली छूट जाएगा तो लेफ्ट बैक कैन ओवरलैप एंड ही कैन प्रेस इनसाइड। हम एक चीज एकदम ही इग्नोर कर रहे हैं। टॉरेस डेब्यूटेड इन एन एल क्लासिको, ठीक है। एल क्लासिको का प्रेशर
अलग ही लेवल का होता है, लाइक दिस इज और ये वाला कुछ ज्यादा ही अलग था भाई। हाँ ये एग्जैक्टली वाला ज्यादा था बिकॉज रियल फैंस इतने ज्यादा थे वहाँ हाँ वही तो। सऊदी अरेबिया में। तो I don't wanna say anything bad about Torres. He was ठीक ठाक. I hope he does अबे better. it's not कि we are saying bad things about him. हम acknowledge कर रहे हैं। I don't wanna do a bad judgment about him. हाँ हम वही acknowledge कर रहे हैं ना कि भाई मतलब अगर if we jump to a conclusion right away एक barely भाई 40 मिनट बाद, हाँ भाई वो तो हम बेवकूफ हुए ना। वही exactly. अभी तुम नहीं लो हो यार, सकता। 1-2 हफ्ता लो। 1-2 हफ्ता क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 5 मैचेस दो मिनिमम। हाँ तुम लो Exact, यार। मतलब ऐसे मतलब अगर उसे तुम नंबर से क्वांटिफाई करोगे आई डोंट थिंक ऐसे होगा। वो उसके देखियो फ्लैशेस आएंगे 1-2 मैचेस में, हाँ। फिर उसके धीरे धीरे पूरे मैच में कंसिस्टेंट रहेगा और मे बी वो शायद और pace पकड़ टॉरेस ले, की एक बात वापस भाई तुम अपने- नोटिस करना, वैसे बहुत वो कंसिस्टेंट प्लेयर है एज इन टर्म्स ऑफ इंजरी। जितना भाई फ्रैजाइल डेम्बेले था, टॉरेस को भाई बेयरली कुछ इंजरी हुई है। वो एक बार तो भाई कुछ ऐसे लाइक कुछ बीच में ऐसे पेट खराब या सर्दी वर्दी कुछ उसको हो गई थी, तब वलेंसिया से निकला था कुछ मे बी 2-3 दिन के लिए, फिर भाई अभी फ्रैक्चर वैक्चर हुआ, इतना ही कुछ उसका ड्यूरेशन रहा है वो इंजरी का। मैन सिटी में आके 1-2 बार ही इंजर्ड हुआ है आई थिंक। बहुत कम, हाँ, अनलेस true. बहुत मेजर है और कुछ, वो भी तो प्रीमियर नहीं- लीग जाके, और डेम्बेले प्रीमियर लीग जाएगा तो बैंचो तो वो हॉस्पिटल से ना निकले। भाई मैं तो मजाक नहीं कर रहा उसका। वो अपने गाड़ी गुड़ी बेच के एम्बुलेंस ले लेगा कि भाई निकलना भी इसी में है, आना भी इसी में है। अबे तेरे को और वो सीधा याद है पिच में वार्डी ने लेके जब आएगा। वो तोड़ दिया था कॉर्नर का फ्लैग। हाँ ओ, तो तूने बोला तो था। वार्डी को इमेजिन कर प्रीमियर लीग के डिफेंडर, और कॉर्नर डेम्बेले फ्लैग को सोच डेम्बेले। यार, वो तोड़ देगा यार। अभी तू ये तो सोच, तू भाई तू डेम्बेले वार्डी छोड़ यार। ये किसी दिन ल्यूक शॉ ने आके धक्का भी मार दिया ना डेम्बेले को, डेम्बेले गया भाई वो मोटी गन। मुझे वो याद है डी मरिया को जब इन्होंने धक्का मार दिया था जब मैनचेस्टर पे वापस आया था वो जाके ऐसे उसके लाइक रिब में कहीं जाके वो अबे वो कौन सी एलईडी की स्क्रीन हाँ, लगी हाँ, उसके हाँ। बगल में, साइड बोर्ड्स में हाँ साइड बोर्ड में जाके लगते पैनल्स गिर गया लगे था ना हुए वो, उसके उससे ऊपर से, पेट वेट हाँ। पकड़ के रो रहा था फिर। मैं बता रहा हूँ ल्यूक शॉ आएगा अपनी मोटी गान मटका के वहां साइड से आके एक धक्का मारेगा डेम्बेले को, डेम्बेले खत्म भाई वही खत्म हो जाएगा वहीं पे। भाई मुझे ऐसा कोई प्रीमियर लीग में क्लब है जो लाइक सॉर्ट ऑफ जैसे वुल्व्स तो पोर्चुगल बना रही है अपनी, फ्रेंच तो जो बना रहे, फ्रेंच जो बना रही है। आर्सेनल ऐसा था बट बेचारा आर्सेन But वेंगर वही- निकल गया उसके बाद से तो जब कोशेली था unless- तब अनलेस I think, ऐसा हाँ, कोई फ्रेंच Tuchel ले क्लब हो सकते तो हैं उसे। नहीं होगा। नहीं आई थिंक ओनली टूशेल वुड वाउच फॉर हिम बिकॉज डेम्बेले उसके अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एक ही सीजन जो खेला था हाँ, but ओबामेयांग तो करी थी, डेम्बेले वगैरह। बट उसने जो करी है ना, उसने बकचोदी भी तो फिर टुखेल के अंडर ही करी थी। हाँ बट आई थिंक टूकेल भी जा रहा था तभी। बट एनीवे मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि टुखेल के अंडर ही करी थी, आई डोंट थिंक सो उसका मेरे ख्याल से बुंडेसलीगा चला जाएगा वो। बट चेल्सी में भी जगह नहीं है। बायर्न पक्का लेने को चाहेगी उसको भाई। बायर्न But ऐसी like टीम है ना जो Koeman मुफ्त में ले रही extend कर है, लिया। भाई ले लेगी वो। 40 तो कतई नहीं मिलेगा भाई मैं बायर्न बता नहीं रहा जाएगा हूँ वो। बायर्न तो उसको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यार जो भी बायर्न जाते हैं मैच वो इतना बफ हो जाता है जाके यार। ऐसे कैसे अगर पेड्री बोल रहा है यार, डेम्बेले चला गया बायर्न और अगर वो जाके बफ हो गया ना भाई, मैं अपने मैं गंदा हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे किसी बन कैसे के यार। आएगा भाई वो फिर। हाँ भाई यार, मतलब बट लाइक बायर्न जाके वो खेल ही नहीं पाएगा। अबे तू जर्मनी में रह के आया यार, तू बता वहाँ वहाँ कुछ खिलाते हैं क्या अलग? मैं बताऊं तेरे को क्या है, बैंड तो वहाँ पे बियर पीते बियर उसके बाद हर ट्रेनिंग हाँ सेशन वो के बाद। हर साल के बाद वो कुछ करते हैं ना वो लोग। वो तो अक्टूबर फेस्ट हाँ। तो होता है, हाँ दैट इज अक्टूबर सेपरेट थिंग। फेस्ट कुछ करते हैं। बट लाइक वहाँ पे पर यार ये गोरेत्स्का वगैरह ये लोग डाइट वगैरह अच्छे से मेंटेन करते हैं, दे वोंट ड्रिंक बियर इतना ज्यादा। अच्छा anyways, Pedri का second half in El Clasico भाई, was he was amazing. This ballistic. guy just इसके आते ही के बराबर आते ही भाई कोई उसने आया। वो बस आया, उसने बॉल अपने पास लिया and he started with like passing on and moving around and he showed कि मुझे क्यों गोल्डन बॉय अवार्ड मिला है। भाई इट वाज लाइक he was never ये injured। है हाँ वो इंजर्ड था ही नहीं, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई ऐसा लगा- इंजर्ड he था was वो। out for 105 days एंड वो आया ऐसे कि भाई वो मतलब हाफ टाइम के बाद डेम्बेले आया। 105 डेज के लिए खेला है बस। पाने के लिए। anyhow he just came back. पेड्री की बहुत जरूरत है बट दिस लीड्स टू अनदर डिलेमा कि अब पेड्री या गावी। नहीं डिलेमा पता है क्या होने वाला है? बुस्केट्स निको भाई मेरे को मैं पर्सनली चाहता हूँ बुस्केट्स ना खुद ही बोल दे
कि यार देख मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं खेलूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट कम टाइम दो मुझे कम अब, खिलाओ, अब जवानों को मुझे खिलाओ थोड़ा सा। हम्म Yeah, तो नीको नहीं तो फ्रैंकी को पक्का भाई बुस्केट्स की पोजीशन मिलेगी। एग्जैक्टली, फ्रैंकी को खेलना मैं तो चाहता हूँ Busquets की फ्रैंकी को मिले यार बुस्केट्स की पोजीशन की, कि वो अच्छा प्लेयर है उस तो पोजीशन। नीको को फिर थोड़ा रोटेशन में रख सकते भाई। मैं कतई नहीं चाहूंगा नीको को भी कहीं जाने दिया जाए भाई, इतना Exactly क्लास भाई, प्लेयर निको Nico गावियो बहुत पेड्री तो अच्छा कहीं नहीं player जा है। रहे भाई, निको गावियो फिजिकल पेड्री उसका भाई इतना फिजिकल, उसकी फिजिकलिटी भी काफी अच्छी है भाई, फिजिकलिटी, ड्रिबलिंग, पासिंग, ड्रिबलिंग ओ भाई साहब। सब इतना बढ़िया है। एंड मैं ही बोल रहा सो हूँ, मेरे को सही में मन देखो कर पता रहा है है भाई, वो मैं बारसा जाके बी में क्रोएफ राइट चाचा को बैक जाके खेला भाई है। थैंक यू बोल के आऊं भाई। वो उस बंदे ने जाके ला मासिया एस्टैब्लिश किया, हम वरना भाई हम कहाँ बर्नली के बराबर होते अभी। भाई मैं बता रहा हूँ एल क्लासिको में जब वो पेड्री ने एक बहुत क्रूशियल पास निकाला था जो निको ने रिसीव किया था, लेकिन फिर वो संभाल नहीं सका निको। चल वो मैं मानता हूँ संभाल नहीं सका, वो अलग बात है, बट वो जो पास पेड्री ने निकाला था ना वो सीधा थ्रू बॉल। तुझे वो याद है पेड्री ने जो शॉट लिया था फिर, थोड़ा वाइड था हाँ बट लेकिन भाई क्या उसने, शॉट, वो Exactly. क्रॉइफ टर्न नहीं था बट ठीक है थोड़ा उसने काटा, फिर And- अचानक पीछे लेके एक डिफेंडर से साइड में खिसका के फिर उसने भाई लाइक आई गेस बॉटम कॉर्नर मारने की कोशिश बॉटम लेफ्ट साइड पे मारा लेफ्ट था साइड वाले पे प्लेयर्स के हिसाब से। बट एक और चीज, ये पेड्री पिछले सीजन का पेड्री नहीं करता। ही इज लर्निंग, ही इज टेकिंग मोर शॉट्स एंड मोर रिस्क्स नाउ। हाँ भाई ही इज इवॉल्विंग, ठीक है, दिस इज लाइक दैट इज द Pedri बेटर थिंग, Pokemon, बिकॉज़ how अब वो लुइस Pedri एनरिके Pokemon एंड जावी के अंडर खेल रहे हैं। भाई मुझे पता है एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अब भाई नीको बहुत ऐसे भाई ऐसे काम सी पर्सनालिटी है, मैच में जाके भाई वो फिजिकल तो पक्का होगा, बट उसके बाद जब रेफरी बात करना तो एकदम भाई ऐसे काम बुद्धा टाइप का आदमी है। हाँ ठीक है बट लाइक दोस आर द वो मतलब ऐसे सिखाते हैं ला मासिया में कैसे बात वही करनी तो। चाहिए, अब everything. सुनना हैरानी की बात क्या, गावी गावी भाई हमको पेपे मिल गया अपना। भाई बहुत हाँ। कसम, गावी एक तो है, इज वेरी क्यूट, ठीक है मैं मजाक नहीं कर रहा, इज सो क्यूट देखने में, बच्चा सा बंदा है यार, और वो क्या जंगली पंती करता है यार गेम में जाके धक्का कैसेमीरो की मार गली के में डाल घुस देगा। गया था। भाई उसने यार। बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जाके भाई किसी को, बायर्न के भाई तूने उसको देखा सूले को, सूला एंड गोरेत्स्का को गिराया था। गोरेत्स्का नहीं निकोलस सूला, सूला को तो सूला या गिराया था सूला, हाँ गिरा दिया था भाई जाके गावी ने उसको भी, और गोरेत्स्का को भी। गोरेत्स्का नॉयर को पास दे रहा था और उसके पास जाके भाई उसको छाती मार दी थी अपनी जाके। गावी का साइज आई थिंक पूछ के बराबर ही कुछ है ना, और हाँ। फिजिक भी उतना ही होगा। हाँ भाई पूछ को 5'6" होगा। हाँ। भाई पूछ को उसने निकोलस सूला ने उठा के फेंक दिया था भाई, सिर्फ एक शोल्डर टू शोल्डर से। वही चीज भाई गावी ने सूले को पटक दिया। बट लाइक दैट इज, वो तो बस गावी से इंटेंसिटी भाई- उसी से आती है। मैं देखता हूँ भाई ये सारे सीनियर प्लेयर्स को गावी से प्रेसिंग सीखनी चाहिए, हाँ मुझे ऐसा लगता है। मुझे याद है भाई चावी ने गावी को बोला था स्पेशली लाइक बायर्न के मैच के अगेंस्ट लाइक बाद में कि किसी ने अगर बारसा को रिप्रेजेंट किया हो तो सिर्फ गावी था आज। सीनियर प्लेयर्स को बोला था कि यू शुड, हाँ सीनियर्स को भाई ऐसे शर्म है तुम पे करके। भाई मैं बोल रहा हूँ आज से अब से अगर एक साल बाद अगर लाइक गावी कीप्स ऑन परफॉर्मिंग लाइक दिस राइट, और इतना ही वो वाइल्ड और मतलब वायलेंट और मतलब अग्रेसिव रहा ना अगले टाइम, मैं चाहता हूँ भाई डेम्बेले चला गया ना उसके अगेंस्ट भाई गावी को खिलाया हम, हाँ और अगले टाइम पटक के भाई एसीएल दे दे उसको एक बारी में। अगले टाइम गावी एंटर्स कैंप नो, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसे गाना हो जाए छोटा डॉट चश्मा लगा के गावी एंट्री मारेगा वहां पे। हाँ मूविंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली Coutinho has moved on to Aston Villa. मेरे ख्याल से अच्छी बात है। उसने कम से कम फाइनली एटलीस्ट रियलाइज तो किया कि भाई मेरी जगह नहीं है यार। हाँ एंड उससे भी ज्यादा आई एम थैंकफुल टू एस्टन विला कि उन्होंने ले लिया सही बात, एंड मेजर पार्ट ऑफ द सैलरी भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू एस्टन विला। एंड जो 65% था एंड जो 35% जो बाकी अपना है, yes, let that go, वो उसको चाहिए नहीं। he's only taking 65% of his salary and fully from Aston Villa. अच्छा है भाई 65 भी बहुत है उसका। हाँ किसने बोला नहीं है भाई, है। I believe Coutinho अच्छा करेगा। उसके 35% से भाई मैं पता है मैं ऐसे राजा की तरह रह सकता हूँ। अबे तू क्या, हम सब रह सकते हैं। हाँ भाई हम तीनों ऐसे राजा की तरह पल सकते हैं। भाई 18,000 सैलरी से तो अच्छी होगी ना वो। कुछ भी हो। मैं तेरी शक्ल पे वो क्राइंग इमोजी लगा दूंगा अभी। प्लीज। एंड एस्टन विला के ओनर्स बहुत रिच है, आई डोंट थिंक they'll have any problem. एस्टन विला तूने भाई सोच
जेरार्ड के बोलने पे भाई एक तो इसको ले लिया लोन पे ही सही, बट ऊपर से टीने को भी ले लिया। टीने ले लिया एंड उनके पास पहले से बुएंडिया है एंड लियोन बेली, उसके बाद भी कोटिन्हो लिया उन्होंने। ऊपर से भाई लिंक कर रहे हैं सुआरेस को भी। विंटर ट्रांसफर विंडो हैज बीन वेरी गुड फॉर अस। ही इज बिल्डिंग वो मतलब 2014 का लिवरपूल स्क्वाड, यस लिवरपूल स्क्वाड बना रहे हैं। बट यस वही जेरार्ड था, इसी वजह से कोटिन्हो ने खुद भी बोला कि आई हैव कम जस्ट बिकॉज़ जेरार्ड वेरी क्रूशियल रोल करके वो क्रूशियल रोल इन रिक्रूटिंग वो बात है। एंड आई बिलीव एस्टन विला हैज हैड अ वेरी गुड विंटर ट्रांसफर विंडो एंड अब देखते हैं कैसा प्ले करते हैं। बट इट्स गुड फॉर बार्सा, ठीक कि वो निकल गया और उसकी वजह से एंड कुछ भी हो हमारे में अभी ये है जितने हाईएस्ट वेज बिल वाले लोग हैं ना उनको निकालना जरूरी है अभी। एग्जैक्टली, क्योंकि so we'll probably get to see Coutinho tomorrow versus like Man U versus Aston Villa है कल। अरे वो तो पक्का देखना है भाई। हाँ 11 बजे या 12 बजे, I don't remember the time but हमारे मैचेस गंदे होते हैं यार रात को 1-1:30 बजे। हम तो भाई हमने अपनी लगवा रखी और क्या, आंख लाल हो चुकी है हमारी। एक तो ये डे लाइट सेविंग्स की वजह से अभी मार्च के बाद तो हो जाएगा वापस 12:30, और क्या ही फर्क पड़ेगा अपने को भाई 12:30 तब भी। हाँ तो निकोलस सूले कमिंग टू बार्सा, इस पे कुछ बोले, मुझे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं इस पे। मुझे बहुत अनलाइकली लग रहा है, बट हाँ अगर बिल्ड ने किया बिल्ड है भी। आई थिंक बिल्ड इज वेरी रेप्यूटेबल एंड मतलब डिपेंडेबल है कि मुझे यार पता नहीं क्यों अनलाइकली सा लगता है यार। लाइक सूला जैसा प्लेयर बायर्न क्यों जाने देगी अनलेस उनके पास कोई एग्जैक्टली कोई you know why he is leaving, he needs more than 10 million and अभी उन्होंने कोमन का एक्सटेंड करा है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें he is getting plus 15 million and there are only 4 or 5 players who earn more than 15 million। बायर्न का कुछ पॉलिसी है ना 20 के ऊपर कभी किसी को नहीं देंगे। I don't think अब ऐसा होगा because now everybody is growing up, तो उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा। उनका पहले रहता होगा ऐसा, बट लाइक आई थिंक अब उनको लाइक मैंने जितना सुना लेवेंडोव्स्की के भाई 14-15 से ऊपर नहीं देते वो लोग। नहीं ही इज अर्निंग मोर देन आराम से 15 से ऊपर। नॉयर, वो मुलर एंड नाउ कोमन। हाँ तो मैं वही बोल रहा था ना कि ये जो तो बोल रहे कि पॉलिसी है बायर्न की 20 से ऊपर नहीं देंगे, उसको पॉलिसी नहीं बोलते, उसको बोलते कंजूसी। ठीक है कि हम भाई नहीं दे रहे पैसे, बोलो कुछ भी बोलो, स्क्वाड तो अच्छा बना लिया। स्क्वाड तो बन चुका है भाई, वो रेपुटेशन वाला स्क्वाड बना ना, पैसे वाला स्क्वाड। बट अगर सूला आएगा तो मैं तो चाहूंगा भाई कि ब्रो बहुत अनलाइकली, अब तो और अनलाइकली लग रहा है मेरे को। क्यों पता है? क्यों भाई हमने इसको अग्वेरो को जब लिया था फ्री में बिना पैसे दिए, हमने 5.5 उसको पर ईयर कुछ पे रखा था। अगर सूला भाई 10 के ऊपर मांग रहा है, तेरे को लगता है रखेंगे? बट नहीं 10 के ऊपर मांग रहा है एंड ऑल्सो नेक्स्ट सीजन हमारा वेज बिल कम होगा एंड वेज बजट बढ़ जाएगा। हाँ लपोर्ता तो भाई उम्मीदें लगा के बैठा है कि भाई लपोर्ता वो कभी खुशी कभी गम में वो नहीं है जय बच्चन उसकी तरह इंतजार कर रहा है भाई कब हालैंड उतरेगा अपने हेलीकॉप्टर से रायोला के साथ कैंप नो में स्वागत होगा भाई आरती वारती करके। भाई मैं बोल रहा हूँ जैसे हालैंड आएगा ना बारसा पहले दिन, और भाई एक और वियर्ड चीज, सॉरी यार तेरे को काट, लपोर्टा कुछ नहीं करेगा, वो लपोर्टा ऐसे टीका लगाएगा हालैंड के सर पे, ठीक है, साइन करवाएगा, हाथ पकड़ेगा, बोलेगा चले पिज्जा, जाके भाई लॉन्डिया नाच दिखाएगा वो वहां पे। भाई मेरे को पता है एक चीज और वियर्ड लगी यार, ये लपोर्टा और पेरेस की कौन सी इतनी भाई बिछड़ी मतलब ऐसे दोस्ती सी चल रही है। हाँ यार ये क्या भाई पैक्ट शार्ट बना रहे हैं कि भाई तू एम्बापे ले हम हालैंड लेंगे। लालिगा का नाम मीडिया थिंग है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, बट इट विल बी अ गुड राइवलरी टू सी। भाई मतलब मेसी रोनाल्डो टाइप बन सकता है, तो उस लेवल का तो नहीं आ सकता बट ठीक है, वो एटलीस्ट दे आर ट्राइंग समथिंग। हां दे आर। अब ये तो सच बात है कि इफ एम्बापे एंड हालैंड आर इन द सेम लीग एंड दे आर लाइक मार्केटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली दे इंक्रीजिंग देयर व्यूअरशिप, दैट्स इट। ओके तो आज का लास्ट टॉपिक FCB Feminine, वापस से एक और बात कर लेते हैं because they have been just phenomenal, they have been phenomenal throughout the years। तो प्यार है यार। Oh yes भाई मेरी तो क्रशेस, भाई पूरा टीम ही मेरा क्रश है। क्रशेस भी हटाओ यार, मेरे को तो ऐसा दिल का प्यार है भाई उन सब से। अरे भाई वो खेलते ना, वो ये भाई ओशवाला और भाई कितनी जेनी एर्मोसो, एक और प्लेयर भी तो हमारी पुतेयास। यही वो छोटी सी होप आई थी सही में, जब मतलब हमारा बुरा टाइम चल रहा था
एटलीस्ट हम किसी चीज पे प्राउड हो सकते थे। Exactly. उनके मैचेस देख के सही में भाई अच्छा भी लगता था वो भाई, इतना डोमिनेट कर रहे हैं यार वो लोग पूरे लैंडस्केप को। उनके अगेंस्ट भाई पता है जर्मन ऐसी टीम्स खेलते हैं वो, ये स्टटगार्ट और ये सब, वुल्सबर्ग, हाँ स्टटगार्ट भी थी किसी एक, पता नहीं कोई मैच देख रहा था। चेल्सी तो भाई चेल्सी झांट थी भाई इनके। आर्सेनल की विमेन टीम बहुत अच्छी मानते हैं भाई, बट वो बारसा के अगेंस्ट जब खेल रहे थे ना बिल्कुल झांट बराबर 7-0 हारे थे 2 लेग्स में इस सीजन मेरे साथ। और दे आर जस्ट स्कोरिंग आउट ऑफ नोवेयर, वो बस मजे के लिए मार रहे हैं जाके। एग्जैक्टली। एंड लाइक मेरे को याद है पिछले सीजन उनका ऐसा कुछ था, दे स्कोर्ड 127 गोल्स एंड कंसीडर्ड कितना 9 गोल कुछ, एंड पूरे सीजन में एक मैच ड्रॉ हुआ था उनका शायद। हाँ इनविंसिबल गए थे ना हम लोग। आई थिंक नहीं शायद हारे थे या वो यार अगर हारे थे। Anyhow, but ये जो डार्क फेस था बार्सिलोना का, like जब मैसी गया and like we were losing 8-2 and everything and all, accounting for everything, FCB Feminine like it came out as a hope, पता है कि we were getting some good news about Barcelona from them and it felt good कि नहीं, and वो बात नहीं कि हम इससे बस ये ले रही थी कि हाँ ये एक साइड चीज है, we can keep it just for happiness, ये बात नहीं। The whole world was recognizing कि what FCB Feminine is and how good they are, and उसका पता है उसका प्रूफ था बैलन डोर इस सीजन। exactly and टॉप 5 में 3 बारसा प्लेयर्स। उसका पूरे सारे मेजर ट्रॉफीज तो बारसा ने निकाले, PSG को मैं नहीं कंसीडर करने वाला भाई। उसका प्रूफ पता है क्या है? उसका प्रूफ ये है कि अभी जो हमने शुरुआत में बात की थी कि 60,000 50,000 60,000 फैंस आर कमिंग ऑन टू द क्लब टू वॉच द मैच, ये है उसका प्रूफ कि भाई वी हैव डेवलप्ड, द वर्ल्ड फुटबॉल हैज डेवलप्ड, पीपल हैव कम आउट ऑफ दैट कि नहीं लड़कों का फुटबॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फुटबॉल। अभी वो वाला है नहीं, मेंस फुटबॉल इज obviously men's football has been always the preferred one, but abhi it's a revolution ki female football has been brought into this spotlight basically because of FCB Feminine. मैं तो यही समझता हूँ। And also they're going to perform in the biggest stadium in Europe, and उधर 99,000 में से 60,000 seats already sell होना, मतलब जो मैच मार्च में है उसके लिए अभी से seats चले गई। It's like a very big thing, and I think this will only just to put it all in context, FCB Femini Johan Cruyff Stadium में खेलती है जिसकी capacity I don't think 15,000 से ऊपर है। 15,000 भी ज्यादा है मेरे ख्याल से। वो रीडेवलपमेंट के बाद शायद 15,000 कुछ। तो भाई फिल होने के बाद ना वो भाई 7-8 हजार से ऊपर नहीं जाता। जस्ट इमेजिन अगर FCB Femini कैंप नो में जिसकी ऑलरेडी कैपेसिटी 99K के बराबर है, उसमें भाई अगर 60,000+ टिकट सेल कर रही है, मतलब कितना मतलब कमाल खेल रही होगी वो भी। Obviously भाई, like they are like very impressed with the squad. They're proving out to be a milestone, पता है फीमेल फुटबॉल में, like women's football में they're proving out to be a milestone, and it's like FCB Femina is one of the best women's team ever literally, because they're creating a legend अभी वो ग्वार्डियोला वाले फेज में उनके लाइक जो हमने पहले देखा हुआ है। आई थिंक मेरे को तो लगता है कि कीके सेटियन की बारसा को ये बारसा फेमिनी की टीम हरा देगी। कीके सेटियन की बारसा को तो भाई रोनाल्ड कोमन वाली बारसा भी हरा देती। रोनाल्ड कोमन भाई, बट कुछ भी बोल, उसके 1-2 मैचेस थे भाई तेरे को याद है भारती जिसमें नहीं याद दिलाता हूँ तेरे को, सेल्टा वीगो अवे में स्टार्टिंग सबसे ब्लैक जर्सी जब बारिश मेसी स्कोर्ड, रेड कार्ड मिला था, तो प्राइम माल्डीनी बन गया था उसमें। पता नहीं क्या हो गया भाई, दानव कहीं का जाके मार के आ गया, ऐसी गोल बिल्कुल अगेंस्ट था वो। कुछ क्या कर्स ऑफ एनोएटा कुछ बोल रहे थे ना, वो सोसिडाड का है एनोएटा तो कुछ भाई कोई बहुत गंदा कर्स था। हम उस स्टेडियम पे जेरेमी मैथ्यू के गोल की वजह से आखिरी बार जीते थे, उसके बाद उस टाइम तू इस सीजन के मैच की बात कर रहे हैं या पिछले लास्ट सीजन 3-1 जीते थे हम वो। हाँ सेल्टा वीगो अभी बोल रहा हूँ, उससे पहले हम 4-5 मतलब आई गेस 4 सीजन अवे मैचेस हम हार रहे थे, मुझे याद है। हाँ बट ये सेम कर्स तो उस पे भी था हमारा सोसिएदाद पे एक टाइम पे, आर्कएंजल स्टेडियम पे हम जब भी जाते थे अवे पे वी यूज्ड टू लूज, बट देन लेटर ऑन अब ठीक हो गया वो सिचुएशन। तो
सोसिएडाड को तो भाई इस सीजन ही 4-2 हरा दिया था स्टार्टिंग में। हाँ मैं तो वो मैच सोच के भाई मेरे को भाई लगा कि क्या बात है भाई, मेसी गया तो कुछ तो थोड़ी बहुत उम्मीद है, फिर हक दिया ना इन्होंने। बस वही है ना, वो उस टाइम पे था ना जब कोमन को बोल रहे थे कि 3 मैच जीतने होंगे। हाँ मे बी उसी टाइम का। यस यार मुझे पता है एक चीज और बहुत मतलब गंदी सी लगी थी। एक तो मेसी को ऑलरेडी भाई इतना मतलब अनडिजर्विंग सा फेयरवेल मिला, लाइक यार कम ऑन यार, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे ख्याल से तो भाई पूरा कैंप नु का रीनेम सब भाई एक दिन में होना चाहिए था स्टैचू। एग्जैक्टली सब कुछ उसके नाम कर देना चाहिए था तब तक। मुझे तो बुरा लगा यार जब द डे मेसी लेफ्ट उसके बाद उसका पोस्टर उतार रहे थे ना, दैट फोटो वेंट आउट वायरल की। उससे ज्यादा पता है ज्यादा गंदा पता है क्या था? हम लोगों ने जब उसका नाम चैंट करना बंद कर दिया 10th मिनट पे। हाँ वी 4 मैच चला होगा वो, उसके बाद भाई 4-5 मैच एग्जैक्टली 4-5 मैच चला होगा, बस फिर खत्म हो गया फिर। बट आई थिंक यार वो ऐसे कर भी नहीं सकते, हमेशा नहीं चल सकता। ऑल्दो ही इज अ लेजेंड एंड मैं इतनी बहुत बड़ा मेसी फैन हूँ, तब भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी क्लब को ये याद दिलाना जरूरी है कि वो एक ही प्लेयर पे चलते हैं। हाँ, बिकॉज बार्सा यार ऑब्वियसली बार्सा इज अबाउट एवरीथिंग, बट यार मेरे को इतना तो लगता है जितना उसने किया था ना, कुछ और बेटर नहीं कर सकते थे भाई। मेरे को इतना तो लगता है कि भाई जितना उसने इस क्लब के लिए किया था ना भाई, लिटरली हम चैंपियंस लीग में हमें रख रहा था वो, ठीक है। उसने जितना किया था मिनिमम टू मिनिमम भाई, इस सीजन तो हमको हर 10th मिनट पे चैंट करना चाहिए था, सिर्फ 30 सेकंड के लिए बट करो भाई। वो तो सही बात है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज निकला है इस चीज से कि व्हेन मेसी लेफ्ट राइट, तो वो जो प्लास्टिक फैंस होते हैं ना बार्सा के, वो भी चले गए। हाँ एग्जैक्टली, वो सारे सामने आ गए पीएसजी सब। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो they were like बार्सा फैन। फिर जब मेसी गए तो they like started एकदम ही उल्टा बोलना उन्होंने शुरू कर दिया था, एंड they were like कि यार मेसी चला गया अब क्या ही बार्सा देखूंगा। ये बैंड वैगन वाले ना, ये सही में हो जाते हैं। तुझे वो याद है लुकाकू ने जब ये I've kissed a lot of badges, I've kissed Manchester's badge, I've kissed वो कौन सा West Brom's badge, but Inter's badge, the taste is different, ऐसा कुछ बकवास आया था ना। वो नहीं सुना तूने कि sex is good but intercourse लुकाकू मीम्स तो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बहुत सिक था यार वो। उसके बाद मेरे को पता है सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आई थी, इंटर के फैंस और सैवेज, उनको पता है भाई हमारी टीम बहुत अच्छा खड़े हो गए ना, बैनर लगा दिया बाहर जाके सैन सीरो के कि इट्स नॉट अबाउट हु रन्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, नहीं हु रन्स ड्यूरिंग द रेन्स, इट्स अबाउट हु स्टेज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। चाओ लुकाकू। भाई मेरे को अभी ये याद आ रहा है तेरे वो प्लास्टिक फैंस निकलने की बात पे। बट भाई मैं वही बोल रहा ना, एट दैट टाइम पीपल वर लाइक कि नहीं मेसी है तो बार्सा है, वरना बार्सा इज नथिंग। आई रियली डिसएग्री। कुछ एंगल्स पे तो वो प्रूव हुआ। हाँ वो तो है, लेकिन एंड आई थिंक ये होना ही था, बट लाइक इस फैशन में नहीं होता, पर ये 2 साल बाद होता और बार्सा शायद इसी स्टेज पे पहुंच जाती, बट लापोर्टा आया एंड ही इज ट्राइंग टू रिवाइव, ट्राइंग टू lay down some principles and a good foundation for future. तुझे क्या लगता है लापोर्टा के बारे में? मतलब do you think he's a good president? I think he's a good president, although Font ज़्यादा prepared था, he had more ideas and everything, but लापोर्टा की एक marketability है, उसकी एक पहुंच है, एक पुल है जो किसी और के पास नहीं है, and पेरेस को वही एक बंदा है जो compete कर सकता है। Exactly, मैं भी यही बोल रहा था। लोग पता है सब बोले जा रहे हैं लापोर्टा पॉलिटिशियन है, जो कि नो डाउट है वो। भाई we need someone like a politician. Actually वो है politician, बट वो ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको बार्सा से बहुत प्यार है। वही exactly. And I don't care वो कितनी shady deals करे, हाँ but at the end of the day जब तक वो प्यार कर रहा है सब बढ़िया। And have you noticed, मतलब उसका PR कितना ज्यादा अच्छे से हो रहा है, जैसे अभी बार्सा भाई इंस्टा पे वीडियो डालता रहता है। हाँ नहीं he need your support। वो तो अलग बात है, वो तो हर मैच को हारने के बाद वो डालता ही है। एंड लाइक वो कल एल क्लासिको के बाद भाई वो बहुत कमेंडेबल चीज थी, एंड उसके बाद स्पीच दे रहा था। भाई एक टाइम आ गया था, बहुत ब्रेवरी दिखाई, ये किया वो बहुत अच्छा। एंड इट्स अ गुड पीआर थिंग जिससे लोगों को अभी भी सपोर्ट एंड बिलीव बना रहे। सपोर्ट की भी बात नहीं, उसने पता है उसने
आई गेस प्लेयर्स में भी इंस्टिल किया जाके कि भाई हम हायर अप, हम लोग बैठे हैं, तुम चिंता मत करो, हम हैंडल कर रहे हैं, तुम भाई अपने एंड से जितना हो सकता है मैनेज। उसने ये नहीं बोला कि हम हैंडल करें, तुम जितना हो सके। अबे एज एन उसने इंस्टिल ये करने की कोशिश हाँ, उसने ये बोलने देने की कोशिश कर रहा था प्लेयर्स को। उसने इन शॉर्ट ये बोला था कि हम बारसा है, ठीक है, अब जो करेंगे हम एक साथ करेंगे, एंड जैसे भी हो वी आर गोना कम बैक टू द टॉप बिकॉज़ वी आर बारसा। उसने बस ये इंस्टॉल करा है, जो बहुत बिगेस्ट स्टेटमेंट वाज साइनिंग फेरान टोरेस। उसको ज़ावी को चाहिए था एंड उसको 55 मिलियन का एक प्लेयर साइन करके दिया। जब बारसा को सब बोले जा रहे थे कुछ नहीं करने वाले, क्राइसिस फाइनेंशियल सिचुएशन, तब भाई फेरान को लेके आए हैं। हाँ, मेरे को लेकिन अभी बहुत लॉन्ग शॉट है ये हालैंड वाला, बट if anybody can pull it off, it's Laporta. हाँ, तो then it's Laporta, yes. If anybody but I think shady deal ही करेगा, but उसकी वो अच्छी बातचीत है उसके साथ, वो बर्गर के साथ। हाँ। अबे रायोला भी तो भाई अभी सर्जरी हुई है कुछ उसकी ऊपर। I know उसका देखा था मैंने, उसने ट्विटर पे डाला कि आई एम फाइन, नथिंग इज हैपनिंग। सर्जरी नहीं, कुछ नॉर्मल चेकअप था। उसको पूछा ही किसने था यार? उसको लगता है बहुत लोग केयर कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ बस लापोर्ता भाई, इतना अच्छा रिलेशन है तो भाई डिलिक्ट को लेके आए और हालैंड को लेके आ जाए, बस मजा आ जाएगा। अब हालैंड आए आ सके तो आ सके, बजट वाला हो गया। इतने प्लेयर कैसे लेंगे हम? फ्री एजेंट लेंगे यार, मेरे को तो लग रहा है माज़रूई आएगा, गाया आएगा मे बी, जोसे गाया अभी उसको भी टारगेट कर रहे हैं। अभी शुरू है ना जोसे गाया वाला की, कौन सा है, लिसांड्रो मार्टिनेज। लिसांड्रो मार्टिनेज इज वेरी गुड भाई। वो एक प्लेयर है जो मैं चाहता हूं बिकॉज़ he can be a good squad player and a very versatile man. He can play as a CDM and as a भाई जितने ये स्क्वाड प्लेयर्स आ रहे हैं ना, आ जाए भाई, लॉन्गले और ये उमटीटी धीरे-धीरे निकल जाएंगे। वही चाहता हूं। एंड नहीं निकल रहे तो बारसा बी में भेज दो उनको भाई, वो तो वहां तो जीत ही जाएंगे। मुझे अभी मिनोराला से ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस चीज का है कि तुम अगर हमें हालैंड दे रहे हो, दो इट्स वेल एंड गुड, ऑब्वियसली भाई हालैंड आएगा तो भाई इट्स the best thing that can happen. But अगर वो ना आए तो हमें कम से कम डेलिट दे दो, क्योंकि अटैक हम संभाल लेंगे कम से कम। जो सब्जी वाला थोड़ी है। अरे अच्छा भैया प्याज नहीं दे रहे, कम से कम धनिया के साथ मिर्ची भी दे दो टाइप, ये थोड़ी चल रहा है। नहीं मतलब एटलीस्ट, मतलब हमें हालैंड तो ऑब्वियसली चाहिए, आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया भी तो ठीक है, लेकिन डेलिट आना चाहिए बिकॉज़ डेलिट हमें डिफेंस पे चाहिए। ही इज अ गुड डिफेंडर, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ की पार्टनरशिप भाई पूरा मतलब 10 साल डिफाइन कर लेगी हमारा। हां सही बात। और रही बात जोसे गाया की, हां उसकी बातें अभी चल रही थी कि गाया का ठीक है यार, बट गाया भी 26-27 का है, ये बहुत शॉर्ट टर्म टाइप ही रहेगा वो अगर भाई। लेकिन एल्बा भी तो इसी एज पे आया था ना बारसा। नहीं एल्बा 24-23 में आया था। 2012 सोच के कितने साल हो गए, एंड ही इज 32 राइट नाउ। 33 कुछ का है अभी वो। हां 33 हो जाएगा। सोच 12 में आया था, अबे बहुत जवान मतलब 9 साल पहले वो। हां तो वही 23-24 की 24-25 ऐसे नहीं आया होगा वो। वो भी है, एंड वो भी काफी मतलब वो एटलीस्ट पहले लामासिया का था, एंड जोसे गाया लामासिया का था भी नहीं कभी, बट आई थिंक ज़ावी के लिए इतना इंपॉर्टेंट एल्बा को इतने टाइम से ना अपने पोजीशन के लिए कोई कंपटीशन मिला नहीं है। फिरपो को लेके आया तो भाई हक देता था। जोसे गाया कैन लिटरली compete him for that position, वो खेलता भी वैसा ही है गाया, एंड धीरे-धीरे फेज आउट कर देना चाहिए एल्बा को। एंड क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो माज़रूई भी आना चाहिए यार, क्योंकि डेस्ट तो पक्का नहीं खेलेगा बिकॉज़ उसको वो फिट होने के बाद भी उसको स्क्वाड से छोड़ दिया, मतलब ही वाज नॉट एल क्लासिको में ना। हाँ ओमिटेड था वो बिल्कुल। वही उसको, वो तो उसका कोई फ्यूचर है ही नहीं, पक्का बता रहा हूं निकल जाएगा उसको। फिर लिया एटलीस्ट उसको 20-25 में बेच दे यार। भाई बायर्न भी इंटरेस्टेड है, विनर 50 पे चाहते हैं तो 50 भी बेचेंगे यार, क्या 20-25 बोला तो यार। मैं चाहता हूं 1.2 बिलियन पे बेचें उसको पूरे स्पाई बारसा उसी के थ्रू। हां स्टेडियम स्पॉन्सर हो गया पूरा भाई। डेस्ट 1.2 बिलियन पे बिक गया ना, वो खुद फुटबॉल छोड़ देगा। उसका भाई एजेंट ही बोल देगा भाई मेरा कमीशन दे दो बस 3%, मेरी जिंदगी सेट है, मेरी जिंदगी सेट है। 30 मिलियन मिल जाएगा उसको भाई उतने कमीशन में ऑलमोस्ट। वो शटर बंद कर देगा अपनी दुकान की, घर बंद, चलो पूरी जिंदगी मेरी शॉर्ट हो चुकी है अब। एंड एटलीस्ट थोड़े से अच्छे फॉर्मल कपड़े ले लेगा। याद है तेरे को मेसी के फेयरवेल स्पीच में क्या है, शॉर्ट्स है, शिकागो बनियान में आया था भाई वो, शिकागो वाले कच्छा पहन के आए थे, उसके ऊपर नाड़ा लटक रहा था साले का यार। इतना पता है डिसरिस्पेक्टफुल लगा था मेरे को। एंड मुझे लगता है कि ये डिपे के आते ना वो और वैसा में बैठे थे। हां
मेरे को इतना बुरा लग रहा था, हमारा सबसे प्यारा प्लेयर भाई वहाँ खड़ा होकर रो रहा है भाई, इमोशंस निकाल रहा है अपने, ये भाई कच्चे बनियान में आ रखे हैं। अबे वो मेरे को थोड़ा सा वो बच्चा लगता है दिमाग से, अभी भी छोटा ही है यार, बच्चा ही है 21 समथिंग यार, 21 22 समथिंग स्टिल, बट लाइक भाई क्या मैं कर बता रहा सकते हूँ, हैं। अभी भी मैं मना नहीं कर रहा, डेस्ट इज स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, बट इट्स जस्ट नॉट फॉर बार्सा। हाँ, he makes out वो स्प्रिंट्स भी अच्छे करता है, वो ड्रिबल्स भी अच्छे करता है, बट बस वो बार्सा वाला फ्लेयर नहीं है उसमें अभी तक। आई डोंट नो इफ इट विल डेवलप और नॉट, अगर करेगा तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं बस किया तो वो क्लिक नहीं कर पाया कभी, मतलब कोई यू नो कंसेक्यूटिवली मैचेस में। एंड कूमन के अंडर वो कर जाता था बस परफॉर्म, पता नहीं चावी सेलेक्ट ही नहीं कर रहा उसको। जावी ने एक बार बोला था, याद है तेरे को, जब वो अभी शायद 3-4 वीक्स पहले था, उसने बोला था कि इट्स वेरी टफ टू इंस्टिल दीज क्वालिटीज इन these players right now because these were the things that were taught in La Masia. तो बचपन से हमको सिखाया है। हाँ, and I think he was targeting these players, ये Depay, Dest, इन सबको, because they don't have that वो की half touch लो and space में लो type, वो अपने पैरों पे लेते हैं and वो पीछे को जाते हैं, पूरी टीम आगे जा रही है। ये चीज पता है, ये ट्रेनिंग पे भी एविडेंट है इनके, जो वो बार्सिलोना की यूट्यूब चैनल वो वीडियो डालती रहती है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रगल भाई अगर कोई वो रोंडो में करते हैं ना, वो ये अभी नेदर डच प्लेयर्स ही हैं ये। लूक डे जॉन्ग तो भाई उसका फर्स्ट टच बहुत लाइक अबिस्मल फर्स्ट टच है उसका, बट ठीक है एटलीस्ट वो हेडर में कॉम्पेंसेट कर रहा है आजकल भाई। That's why Barca has scored 8 goals in La Liga. भाई बार्सा का एक तो तू वो देख रहा है कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लाइक कितने लोगों ने स्कोर किया है, रोबर्टो ने किया है, गावी ने किया है, मिडफील्ड में तो सबने कर रखा है, कम से कम 3-4 मार रखा है। अब बुस्केट्स के अलावा बुस्केट्स ने भी मारा, बुस्केट्स ने मारा 3 नहीं मारे, बुस्केट्स ने 2 या 1 मार रखा है, 2 मारे गोल शुरू में ही मार दिए थे उसने, बुस्केट्स से मार दिए थे सीजन की शुरुआत में। ल्यूक डे जॉन्ग की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, उसको जब कोमन ने खरीदा था, एक ही रीजन देके खरीदा था कि ही इज वेरी गुड इन like he's very good with headers। एक तल्ला साला लूक डे जॉन्ग आने भाई, पहले जब लिया था लूक डे जॉन्ग किस टट्टी को ले लिया वो कर लिया बोल रहा था, अब तारीफ कर रहा है। अरे तू मेरी बात सुन, अभी भी उसके मैं वो तो वो वाला मेंशन कर रहा है ना, मैं समझ गया कौन सा कोट। he when it comes to crosses लूक डे जॉन्ग is better more than dangerous in box than Neymar। हाँ वही बात है, बट उसी के रिगार्डिंग बोल रहा कि पिछले कुछ मैचेस में जितने भी हेडर्स आए उसने कनेक्ट तो किया है कम से कम, इतना तो मैं बोलता हूँ कि हाँ उसने अबे उसने बाइसाइकिल मारा भाई, वो भी बोल रहा था लगा तो चाहिए ही, इतना तो चाहिए नहीं मतलब, बट वो चीज था नहीं ना 2022 वो वीडियो देखी आपने ना, जिसमें एक ये पता नहीं कहाँ के लोग हैं वो, बट वो एक आदमी जिसमें ये ब्रूनो फर्नांडिस पे स्पेशली बना था, जब मैनचेस्टर में कुछ भी कर देता था तो मैनचेस्टर के फैंस हाइप कर देते उसको डे ब्रुयना के साथ। अबे लाइक एक वीडियो नहीं है जिसमें एक आदमी आके बॉल को पैर रखता है और निकालता है, तो सब भाई चिल्ला रहे होते ओ क्या कर दिया क्या कर दिया। हाँ याद है। अभी लूक डे जॉन्ग के साथ वही हो रहा है भाई, वो जो बेसिक लाइक नंबर 9 को करना होता है वो कर रहा है। सही में वो थोड़ा सा मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी लो थी कि मतलब वो नॉर्मल पास कर दे तो वाह। Anyways, this has been यही हमारे पास था बार्सा के लिए। बार्सा मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि बार्सा अभी परफॉर्म तो अच्छा करती है एंड लाइक ठीक ही कर रही है। ऑब्वियसली बार्सा हैज वोन 15 out of possible 20 points in the last part of matches। obviously अभी सीजन बाकी है, we can bounce back। हाँ, we can bounce back। Last season भी ऐसा ही सीन था। What are your predictions? I think मेरे हिसाब से कि बार्सा सीजन एंड तक थर्ड एंड करेगा। थर्ड मैं भी सोच रहा हूँ थर्ड, अब थर्ड तो आ जाएंगे। थर्ड पे भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, देख सेविया कितना भी से आगे निकल, सेविया कितनी भी बकवास अभी चल रही हो, बट सेविया नहीं तो बेटिस में कोई टक्कर रहेगा। एंड सेविया एंड रियल में कितना 6 पॉइंट्स का ही 6-7 बहुत माइनर डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। हां तभी बट सेविया नहीं कर पाएगी इतना यार। सेविया का भी हैंडीकैप पता है क्या है? उनके दो लमेला और वो सुसु वो इंजर हो चुके हैं, तो अभी सेविया हमारे किसी को लेना चाहती थी, अपडे को शायद ले लिया
उसको ले लिया पोर्टो से, वो 5 स्टार्स किलर यार, उसका नाम भूल गया मैं, जीसस देख एज फार जीसस कोरोना, अरे कोरोना ले लिया। भाई उससे याद आया, तूने वो सुना डेविड नेरेस चला गया कहाँ गया? हाँ शाख्तार। क्या What the fuck? देख कब गया ये? मजाक कर रहा है क्या? अभी गया? हाँ मेरे को आज ही कुछ वो, मैं पता नहीं ऐसी न्यूज ढूंढ रहा था कुछ इसमें बट भाई सही में मेरे हिसाब से तो सही में नेरेस गया इसीलिए एक ही बंदे की वजह से, एंटनी ने अपनी प्लेस उसने सॉलिडिफाई कर दी भाई, सॉलिडिफाई कर दी सही में। एंड आई थिंक अगर बारसा को विंगर वगैरह लेने हैं तो एंटनी बेस्ट है, थोड़ा फ्लेयर वेयर वाला है। बट लाइक यार ये फीफा तो चल नहीं रहा जो हम बोल रहे हैं एंड लाइक देख रहे हैं वो ले लेंगे। पर भाई मैं हैरान था भाई, डेविड नेरेस चला गया शाख्तार डोनेस्क, एंड उसकी वैल्यू भी अच्छी है भाई अभी मार्केट में, पता नहीं क्यों। ही इज 30 मिलियन एटलीस्ट, एंड आई थिंक कितना 25 का है, कुछ 24-25 का हो गया वो भी। हां उतना ही है। हाँ भाई शाख्तार चला गया आज ही। शाल्के एंड शाख्तार डोनेस्क। ओके हाँ तो as far as I know अभी रियल मैड्रिड at 49 points, सेविला is at 44 I think, so 5 point पीछे। हाँ 44। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों 33 पे है, एंड बारसा is at 32। बेटिस, एटलेटिको एंड एक और कौन है ऊपर? सोसिडाड। नहीं एटलेटिको, बेटिस एंड सोसिडाड, ये तीनों ऊपर है बारसा से, सेविया और मैड्रिड ऊपर। हाँ सोसिडाड ऊपर है ना, सोसिडाड वो बहुत अच्छा खेल रहे थे सीजन के शुरू में यार। सोसिडाड 5 सेकंड है, तीसरे पे बेटिस है, चौथे पे एटलेटिको मैड्रिड है और छठे पे बारसा है अभी। देख फोर्थ तो आ जाएंगे हम, उसकी चिंता नहीं बस। हाँ यार मैं थर्ड का वाउच नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम मेसी के साथ लास्ट सीजन थर्ड आए थे, तो भाई अभी तो कट देम सम स्लैक। अब भाई मैं पिछले साल भाई कोमन भी तो था। बट ठीक है, चावी थोड़ी वहां जाके खुद पर्सनली बॉल के साथ वो थ्रू बॉल डाल के देगा। पर तब भी यार कर लेगा चावी, आई थिंक कि कर मतलब लेगा, बट पहले तो होप थी कि यूरोपा लीग जीत के करेंगे, पर अब मुझे लग रहा है थोड़ी कंसिस्टेंसी ला रहा है। होप तो है 100%, मेरे को कन्विक्शन है कि वो चैंपियंस लीग कराएगा क्वालीफाई। वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है चावी नहीं कराएगा, बट मैं ये नहीं गारंटी देने वाला भाई वो थर्ड फिनिश कराएगा। मेरे को लग रहा है फोर्थ कर देगा वो, कोई चिंता नहीं भाई। कुछ भी हो इस पॉइंट पे हमको वही चाहिए, अभी खेलना है बस हमें यूसीएल। कुछ भी हो, और मैं तो चाहता हूँ बारसा अभी यूरोपा जीते, उसके बाद यूएफा सुपर कप जीते। ओ भाई टू गुड पता नहीं भाई, नापोली से जीत जाए। हमें ड्रॉ में भी सबसे मुश्किल टीम मिली है, किस्मत ऐसी है ना। नापोली बट आजकल मैंने जितना सुना अच्छे फॉर्म में नहीं है, नहीं खेल रहे इतना। एंड वो भी चले ना, भी तो चला गया टोरंटो जा रहे वो तो उसका न्यूज़ आया ना, तो भाई पहले मेरे को लगा टोरिनो जा नेपोली अभी थर्ड पोजीशन पे है सीरीए पे। तुम क्या बोल रहे हो यार, नेपोली थर्ड पे। बट सीरिया की क्वालिटी भी तो खराब हुई है भाई। क्या बोल रहा है, सीरिया हैज कुछ और हुआ है तो अभी डेवलप किया है सीरिया कुछ सालों में यार। इंटर टॉप पे है, मिलान टॉप पे चला गया, नेपोली थर्ड पे है। चैंपियंस लीग में देखना कितने ही सीरिया के क्लब्स है। हाँ वो तो चल वो भाई मैं कह रहा हूँ, एंड लाइक तभी मैं कह रहा हूँ यार वो इतने ऐसे देखने के लिए तो भाई सीरिया तो 20 वो जब यूवे का डोमिनेंस चल रहा था तब भी अच्छी थी, तो अगर यही लॉजिक देगा तो तभी अच्छी, लेकिन नहीं तब नहीं थी अच्छी। तभी तो कंपटीशन देती थी, तभी सिर्फ यूवे की वजह से पूरी लीग सही थी भाई। एट दैट टाइम वो क्या बोल रहे हैं यार, सीरिया मेरे ख्याल से वन टीम दैट वाज यूवेंटस। सीरिया अर्ली 2000s के बाद खत्म हो गई थी, लाइक एटलीस्ट 10 साल के लिए। तो अब नए अर्ली 20s में उनका रिवाइवल हुआ है, जब से ये इंटर को नए किसी ने खरीदा, फिर एसी मिलान का जब वो रिवाइवल हुआ। रिवाइवल नहीं, ये कौन सी एक फर्म नहीं है एलियट करके कोई वल्चर, ये वल्चर फंड्स कुछ इनका नाम था एलियट, जो भी है। इन्होंने जब अक्वायर किया ना मिलान को, तब जाके भाई थोड़ी ठीक हुई है। अभी मैल्डिनी को इन्होंने स्पोर्टिंग डायरेक्टर वो सब बना के रखा है, तो अब भाई मैल्डिनी की वजह से तो वो तो काफी टाइम से चल रहा है, 2 साल हो गए। एंड वो कौन है इनका मैनेजर, कौन है नाम भूल गया, ये स्टेफेनो पियोली को थोड़ा सा दिया टाइम, वरना ये रैंगनिक को लेके आ रहे थे बीच में। रैंगनिक भाई ये तो पियोली आउट कर रहे थे पहले उसके मिलान के टाइम। हाँ बट लाइक वो माल्डिनी वगैरह ने कन्विंस करा थे, एंड इब्राहिमोविच आया तब जाके। इब्राहिमोविच की तो भाई बहुत क्रूशियल उसका रोल रहा है,
क्योंकि लाइक उनकी स्क्वाड भाई सभी जवान है, कोई है ही नहीं एक्सपीरियंस, मतलब एक वो होता है ना कि कोई एक स्क्वाड में लीडर होना चाहिए जो मतलब वेटरन टाइप। सिमोन केयर एंड ये था इब्राहिमोविच। हाँ यार कायर, वो केयर बोलूं कायर बोलूं जो भी है, केयर सिमोन केयर। तो यार उसका मैं फिर भी इतना नहीं बोलूंगा। इब्राहिमोविच ने भाई मिलान के साथ तेरे को लीग पता नहीं है क्या, वो सिर्फ डेनमार्क की मतलब वो बैलन डी'ओर में इसीलिए आया था क्योंकि क्योंकि उसने उसने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई। हाँ तो आई थिंक वही है, क्योंकि कैप्टन भी वही है इसी मिलान का। वो लाइक रोमानियोली को हटाया था। वो कौन सा प्राइज दे देते हैं वो, फेयर प्ले वगैरह टाइप। नहीं फेयर प्ले नहीं, अबे जब ऐसे तुम रेस में थर्ड के भी पीछे आ जाते थे, कंसोलेशन उसको कंसोलेशन टाइप दे दिया बस बैलेट। बट एक और टीम है अभी सीरिया पे जो हर साल मतलब दे आर ट्राइंग टू बी अ रेगुलर इन यूसीएल, वो है अटलांटा। नहीं तो भाई अलग काम किया, उसका फुटबॉल देखने में मजा भी आता है ऊपर से। सेरिया जितनी वो भाई डिफेंसिव वो है ना रिजिडिटी उनकी, कैस्परी भाई जाके 6-6 ठोक के आता है। अभी भी उनका मतलब ऐसे ही होता है, हाई स्कोरिंग 7-4 6-2 4-1 खाते भी बहुत है बट मारते भी तो साथ। तभी तो वो इतने ओपन खेलते हैं ना, इसीलिए उन्होंने अभी वो भी ले लिया बोगा, जेरेमी बोगा, वो भी बहुत अच्छा चेल्सी का प्लेयर था, बट लाइक दे लेट हिम गो एज यूजुअल, चेल्सी जैसे जाने देती है। एंड उधर ले लिया उन्होंने। चेल्सी मतलब इकलौती ऐसी क्लब है जिनके पास एक अच्छी एकेडमी है, बट दे चूज टू लाइक गो विद गैलेक्टिको पॉलिसी। अब्रामोविच डजंट मेक सेंस। वो तो पैसा है ना, क्या करेंगे, इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए उन्हें। मैड्रिड का भी तो वही है। बट लाइक अभी तो यार अभी देखना चेल्सी की स्क्वाड में कितने सारे, माउंट है, रीस जेम्स है, एंड और कौन है, मतलब उनके उसमें तो से यूथ एकेडमी से। अबे अभी ये है ना, अरे एक अभी तो डेब्यू किया था वो। अरे डिफेंस पे क्या नाम है इसका, डिफेंस अच्छा चालोबा हाँ चालोबा भी है। तभी तो ला कॉबहैम कह रहे हैं, ला कॉबहैम, ला मासिया का कॉपी। क्या नाम है उनका? उनकी एकेडमी का नाम कॉबहम है, कॉबहम करके। कॉबहम, हाँ। तो फिर उसको ला कॉबहम कह रहे हैं, ला मासिया का ला मासिया को वो कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये पता है मैड्रिड क्या कर रही है? ला फैब्रिका कुछ भी। अबे भाई उनका कस्टेया उनकी जो बी टीम है, उधर से यूजुअली आते थे प्लेयर्स अच्छे। भाई मैड्रिड ने कासियास और गुती के बाद ना किसी को नहीं निकाला अपने उसमें से ढंग का। एंड लाइक मोराटा डिबेट अच्छा बोले भाई, मोराटा का करियर ही भाई 4 क्लब के आसपास ही रिवॉल्व किया। अबे वो प्लेयर नहीं है, वो है भाई ऐसा स्वैप ही करते रहते हैं। वो टूरिस्ट है भाई, वो घूमने निकला है। मैड्रिड की तीनों बड़ी टीम, चेल्सी मैड्रिड के 2 जाएगा, एटलेटिको मैड्रिड जाएगा, बार्सा आएगा। मेरे को इन 4 के अलावा कुछ याद नहीं मोराटा का। मनी लॉन्ड्रिंग करता है उससे बस। हाँ बस, जैसे ये आर्थर प्यानिच का वो डील हुआ था ना, मेरे को लगता है इसका वही हुआ था। हाँ मेरे को भी वही लगता है। और अभी बार्सा ना ले ले भाई, वो मेरे को तो लगता है अभी भी बार्सा उसको 50 मिलियन में ले लेगी भाई। 50 कुछ पैसे ना दो बस, कोई नहीं दे रहे उसके उतने पैसे। फ्री में आ रहा था कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं होगा ना, क्योंकि एथलेटिको से डील करना होगा एंड दे आर नॉट इजी टू उनको तो एक पैसा नहीं देना ऑलरेडी भाई। कितना और क्या डील चाहिए हमने भाई 120 ग्रीजमैन के दिए, ग्रीजमैन के दिए, उनको रिटर्न में ग्रीजमैन भी मिल गया फ्री में। हाँ इंसानियत दिखाओ थोड़ी बहुत, और मत लो पैसे हमसे यार। एंड सोच अब अगर 2 साल के बाद उन्होंने 50 मिलियन नहीं दिए, बहन जो और कटेगा अपना। हम कॉन्ट्रैक्ट देयर माइट बी सम पेनल्टी। अरे वो वाले कॉन्ट्रैक्ट में फिर कितना बचा होगा ग्रीजमैन के? ग्रीजमैन 2025-24 तक कुछ है भाई। ले था यार। मान ले अभी अगर पैसे नहीं दिए ना तो वो वाला सीन नहीं है, अरे डिंकी चूना लगा गई रे डिंकी। ले लेगी भाई एथलेटिको, क्योंकि सुआरेस तो निकल रहा है, जोआओ फिलिक्स भी नहीं रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड उन्होंने मार्टियोस कुनिया ले लिया था। मार्टियोस कुनिया पिछले सीजन लिया, एंड जो वो है कोरेया भी है, वो तो अच्छा खेल रहा है भाई। एक एथलेटिको की साइनिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को, रोड्रिगो डेपोल। हाँ बहुत बढ़िया। क्या अभी भी क्या खेला भाई वो। अभी भी वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहा, क्योंकि सिमियोनी को उसको निकालना नहीं आता। तू उसी को देख स्कलोनी के अंडर कैसे भाई डी मरिया को ऐसे पास निकाल के देता है भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा था क्रूज मार रहा है। वो बहुत एथलेटिक है यार। आई थिंक ही इज द परफेक्ट बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर जो आजकल बोल सकते हैं। हाँ, और एक चीज तू नोटिस कर,
पता है ये बारसा ने 2008 में डोमिनेट करना शुरू किया था ना, जबकि उस टाइम पे सब चिल्ला रहे थे कि मॉडर्न फुटबॉल हैज चेंज्ड, गेम इज मोर फिजिकल, अभी हमारी तुम्हारी ये टेक्निकली गिफ्टेड लड़के नहीं चल पाएंगे, उनको फिजिकल होना पड़ेगा, ये वो। इन्होंने 2008 में भी यही कहा था, बट मतलब हिस्ट्री विल रिपीट, मेरी तो उम्मीद यही है। और भाई उम्मीद क्या, दिस इज बाउंड टू हैपन। बारसा ने भाई तुम नोटिस करो, जब अपने पाथ से स्ट्रे किया है भाई, योहान क्राइफ ने डिफाइन किया कि भाई तुम्हारा ये तरीका है, प्लीज इसको फॉलो करो, कि भाई तुम ला मासिया से आ रहे हो, ये स्टाइल ऑफ प्ले है तुम्हारा। जब बारसा ने भाई ऐसे गैलाक्टिको ऐसे शेटी पॉलिसीज अपनाने की कोशिश करी भाई, कभी नहीं जीते हम। बार्टोमियो ही नहीं, मतलब उसके अलावा भी देख, लाइक ये तेरे को वो याद है गैस्पार जब था प्रेसिडेंट, बीच में जब 3 साल पहले 2000 से 2003 तक, फिर लपोर्टा आया था। गैस्पार के टाइम पे हमने बहुत भयंकर साइनिंग करी। ये एडगर डेविड्स तो एडगर डेविड्स तो 2004 या 5 ये मार्क ओवरमार्स और ये अबे ओवरमार्स और ये दो ऐसे जुड़वे नहीं थे, फ्रैंक डेबोर और रोनाल्ड डेबोर। उसमें से वो आया था, फ्रैंक आया था अपनी टीम में। नहीं, दोनों नहीं थे, एक ही आया था। दोनों थे। अच्छा तो भाई उस टाइम पे तीनों भाई ऐसे भयंकर साइनिंग करी, हुआ कुछ नहीं, और डेट में जाती रही बारसा। तो इट्स नॉट लाइक कि बारसा हैजंट फेस्ड दिस सिचुएशन जो अभी चल रही है। वी नो द आंसर, बट हम पता नहीं, हमको ये लगता है कि भाई नहीं कुछ और तरीका है। आंसर वही है, वही है, वो एक जो फिलॉसफी वाला बंदा आता है ना, वही लेके आएगा। इसको टाइम दो चावी को, वो करेगा। बट लाइक स्टिल वही है कि ऐसे ही लोग चाहिए जो पहले से जुड़े हुए थे ऐसी चीजों से। हाँ, अबे क्योंकि चावी को पता है ना कि लाइक तूने वो देखा जब चावी वापस आया, उसने वो बोला कि पोजिशनल प्ले तो भाई भूल ही चुके हैं सब प्लेयर्स। लाइक 2015 के बाद किसी ने फॉलो ही नहीं किया पोजिशनल प्ले। तो भाई वो अभी सिखा रहा है, मतलब ये एटलीस्ट ये सीजन तो वो सिखाएगा पोजिशनल प्ले क्या। एंड सोच, ला मासिया के प्लेयर्स को सिखाना इतना मुश्किल है, जो बाहर से प्लेयर्स आए उनके लिए कितना डिफिकल्ट, उनके लिए क्या है, वर्कर्स दे है भाई। ऑब्वियसली तुम कोई कांसेप्ट जो तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं होगा, तुम लिटरली आ रहे हो एडजस्ट करने में, सोच 1 साल लग गया था। हाँ, बारसा के तरीके पे अबिडाल को, जब एरिक अबिडाल को बारसा के वे में लाइक जब लियोन से आया था, एंड भाई पेप गार्डियोला बोलता था कि he was the one who has improved the most अपने वो 2009 चैंपियंस लीग विनिंग सीजन के बाद उसने बोला था। I still remember। अरे कमाल था यार। बस अभी पता है सबसे ज्यादा दिल पे लगती भी वही बात है ना कि भाई हमने बारसा को उस स्टेट में देखा है, मतलब मैंने तो देखा एटलीस्ट भाई, मैं सबने देखा भाई 2011 पे लाइक वो भाई ऐसे कप वप उठा रहे, मैंने वो देखा, मेरी बचपन की याद बारसा के साथ वो है। अब भाई मैं 8-2 और 4-0 सब देख रहा हूँ। वो सुना है जब मेसी बोल रहा है कि तुम्हें 3 चाहिए था, हमने तुम्हें 3 कप लाके दे दिया है। केरन लास 3, Akistan लास 3 इसका और फिर उसने बोला विस्काल बारसा, विस्काल कातालुनिया, फिर बंड मेसी वेल्स की। हां, डैनी अल्वेज, नेमार सारे आ गए थे कूद के। हां, सो बात यही रही कि Barca literally is improving. We 3 as co-Barca fans, we truly believe कि अभी brighter days are in the near future. अच्छे दिन आ रहे हैं। और वो वाले अच्छे दिन नहीं, सही कहते हैं मोदी वाला आपकी बात लगा सरकार। So yes, we are looking forward to some better signings. अभी कुछ अच्छे signings तो हुए, और भी कुछ और हो जाए अभी सामने better off होगा। And बात वही है, give Xavi some time. We'll obviously build up to be a better team. We just need time, and the younger lads need a bit more of experience. Lads, British. हाँ, अब क्या ही बोलते हैं। अब भाई इतना एकदम ही देसी पॉडकास्ट कर दो, तो एकदम देसी पॉडकास्ट करते हैं भाई। छोरों को चाहिए Pause the fucking ball, mate. Yes. Anyways, हाँ, तो बात ये है कि they need a bit of experience, and I believe they'll get it soon enough. And we have El Clasico में हमने देखा भी है कि Barca has started performing better, and थोड़ा time लगेगा, but we'll truly get back into that phase. On this note, we're gonna end today's podcast. I hope you थोड़ा लंबा ही खिंच गया आज, but yes, because this was Barca special, ये तो होना ही था। 2 घंटा तो बहुत, ये तो लीस्ट मिनिमम है जो हम कर सकते हैं। अभी तो हम और ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन भाई ठीक है, 5-6 मिनट ज्यादा देखोगे। भाई सुबह उठना है मुझे, मेरा कल ऑफिस है। अरे भाई ऑफिस
So yes, do like and subscribe our channel if you like our podcast, and comment भी कर देना, and subscribe to our page and Instagram as well. हमें memes भेज if you want us to post any memes that you create. We're always there. And yes, Whisker El Barça. हाँ यार, जाने से पहले बस एक बार I would also like to thank Abhinav like for being a guest in this episode. Thank you guys, it was really fun and like बहुत मुश्किल ही है कि आजकल जो बारसा फैंस रह गए हैं उनसे बात करने को मिले हार्ट टू हार्ट। यार मोस्ट वेलकम, तेरे को जब आना पॉडकास्ट पे आ सकते हैं यार, कोई मैं तो चाहता हूँ अभी वैसे ही हम बारसा फैंस बहुत भाई लिमिटेड है इंडिया में। Exactly. So this is not like the only Barca special episode. अभी बहुत सारे होंगे. And apart from that, not only Barca special पे तुझे और भी episodes पे बनाएंगे. तुझे जब भी मन हो तो हमें बस बोल देना है. You can come over anytime. We can talk about it. And I always say the more the merrier है यार. जितने लोग होंगे उतना better होगा. I'm sure. And like तुम लोग मतलब और दूसरी टीम वालों को भी बुला सकते हो. And like yes. सही discussion. बिल्कुल यार. अभी पहला एपिसोड में हमने मैन फैन को बुलाया था, तभी ये बिना मेरे को बोलता है यूनाइटेड वाले को बुलाएंगे, उसकी गांड मारेंगे। ये कट होएगा। अबे बस पॉइंट ये है कि तेरे को भी मैंने मतलब आई गेस उस पे जब बात कर रहे थे तभी बता दिया था ना कि हम बस कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख भाई, हम कोई मोरिनियो तो है नहीं, अब टैक्टिकल एनालिसिस देंगे। तो अब भाई जो भी है बस कुछ लौंडे मिलके फुटबॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो बस इसी चीज की हम कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं बस। And on that note, we're wishing you have a nice week forward सामने, and all the Barca players, please pray for Barca. Will definitely do good. Good night. We're getting back. Yes. See you. Good night, guys. Chalo, bye bye. Good night. Bye. Peace.